Namaskar. In today's video, we will be discussing December 2023 का paper, your attempt का paper, not your attempt of course, the previous attempt paper. Seem to be quite reasonable. From my end, of course, I would say it's easy. Now it's the viewer who has to decide whether it was easy or not. Let's get started with the first sum. Now as you all know, as you have been watching the videos earlier also, I'll be taking all 40 sums together, which of course in the attempt it happened to come randomly, so you'll be seeing the sequence number with certain gaps, actual question numbers over here. But while discussion, I'll be discussing 40 sums at stretch with you, followed by then LR and stats ka sum taken by my colleague Vaibhav Karia sir. Let's start with the first sum. The very first sum starts with annuity ka sum, as you all are reading. How much amount was required to be invested every year to accumulate 30,000 at the end of 10 years? Every year, so annuity ka sum. Future value to be accumulated, that's 30,000. So let me apply first future value ka formula. So future value, it's going to be the annuity size, the installment, into then 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I. So now we all know that entire term in the bracket, we can also call it as ANI, the future value interest factor. Why did I happen to say this right now? Because they are supporting me with that value. See, for my sum the n is 10. The number of times a person is going to make annual investments is 10 times, 10 years. Rate of interest I is 10%, 10 by 100.1. So they are giving me the ready value from the annuity table. So I would like to use it. So now coming in, the future value what I want to accumulate is 30,000. Installment what I need to keep aside every year, I need to find out, into the value of that ANI, which is given to me as 15.93. So those who have just missed out the track, you may be thinking ANI bol raha and then A 10 comma 0.1. Okay, for my sum the n is 10 and the I is 0.1. Even if I would have fitted over here, I would have fitted the same thing, no? I is 0.1 and n is 10. But that value was given to me directly. So I get to my installment size, what I need to keep aside every year, quickly by going 30,000 divided by 15.9374. So on the calc, 30,000 divided by 15.9374. It turns out to be 1882.36. So it's the option A. That's the amount what you're supposed to keep aside every year. Assuming nothing was mentioned, so we have applied ordinary annuity ka formula. So this amount has to be kept aside every year end for 10 long years. And then you happen to see handsome value 30,000 coming to you. Now moving to the next sum. Okay, suppose Mr. X invested 5,000 every year starting from today. Okay, let me underline starting from today in a mutual fund for next 10 years. Every year starting from today, so it's annuity ka sum. Assuming the average compounding rate was 18%, what is the future value? So again the same formula. Future value is equal to the installment what you keep aside every year in this sum, probably 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I. Okay, and then into 1 plus I, because this is annuity due ka sum, immediate annuity, wherein you have to multiply with 1 plus I extra. Now coming back over here, now that's the only thing what student happens to miss out. So he has to read that thing, starting from today. The investment was started today itself. So every installment, if you have gone through the theory, then it must be getting one extra compounding period. So coming back over here, your installment what you are going to pay every year is 5,000. Check that. And then the rate of interest is 0.18, 18%. So 1.18, and you are going to carry it long for 10 years. Minus 1 upon 0.18. And we are not supposed to forget into 1 plus I, that is 1.18. Now the calculation part, it's going to be a bit easy for you, but because for 1.18 raised to n, you are going to refer to that
screen number of yours, which is going to go up till 11 when you are pressing consecutively equal to sign. For me, I'll have to count it. So let me start. 1.18 into equal to, that's the square. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's my 1.18 raised to 10 ka value, which you must have got it, but your screen must be right now showing 11. Then minus 1. Then divide by 0.18. So I have finished off that much part. Then into 1.18 and then into the installment size 5000. That amounts to 1,38,775.72. So we have to check that. That's the closest value what I can see. 1,38,774.55. I got that answer. So probably the answer goes option D in that. Now coming to the next one. Person wants to, it's a wonderful sum. It's like you have to make decision whether you want to lease in a space for commercial purpose or you want to go for outright purchase. So it's a decision making ka sum. Now how do we deal with that? If you are reading through the sum, he can acquire the commercial space by leasing, and for leasing for 10 years, wherein he'll be paying annual rent of 2 lakhs for 10 years. Or the option 2 is he purchases the space full outright, 12 lakh rupees. So he bought the space. Now which one he should select? Should he go for renting the commercial space or should he purchase the commercial space? How do we approach this sum? First of all, option 1 says, let us put it as option 1, purchase, which is going to cost him 12 lakh rupees. Okay. So this is the money he'll have to shell it out. You can also call it as cash outflow. 12 lakh rupees ka cash usse gaya. If he is thinking of buying the entire commercial space, purchase option. Second option is lease in. So option 2 is lease in. So he wants to take it on rent. So he'll have to pay 2 lakhs annual rent, 2 lakhs annual rent for 10 years. So that's going to go for 10 years. Now what we can do in this case is, if he wants to make a decision, he should think in that way. Okay, what if I want to pay off this entire rent of 2 lakh rupees every year for 10 years today itself? So in that case, we try to find out the present value of all the rental outflows. And that is equal to, I think so, the annuity, the rent size, into 1 minus 1 plus I, the whole raised to minus n upon I. So let's work out. Again, can I just recall what did I say? He was supposed to pay 2 lakh rent every year for 10 years. If he wants to make a decision today as to should he lease in the commercial space or purchase this commercial space, what he should think is, the 2 lakh rent what I was supposed to pay for 10 years regularly at year ends, what if I pay it all together today? Then in that case it happens to be equivalent to the present value of the annuities of 2 lakhs forwarded every year for 10 years. So let's figure out. So he is deciding to pay the rent all today only. So पूरा 10 साल का rent आज ही भर देते हैं. So 2 lakh is the rent, 2 lakh is your rent size, and then 1 minus, okay, the money growing at the rate of 14%. So 1.14 raised to minus 10, he'll be paying the rent for 10 years upon 0.14. Okay, now we first hit that 1.14 raised to 10. So he'll be going up till 11. But let me recall. You will be then reciprocating that value because you will be reaching to 1.14 raised to 10. So you'll have to press divide equal to reciprocate. For me, I have to go for that sign 1 by x. And then we carry on. So 1.14 into equal to, that's the square. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now this is the value what you must have reached and your screen must have reached to 11 screen number. But then you all have found 1.14 including me raised to 10. I need raised to minus 10. So I press reciprocal, you have to press divide equal to.
So you have finished off that much part. Now subtract 1 from that. So of course reverse subtraction. So you also got minus, even I got. So we have to press plus minus. Then divide by 0.14 and then into 2 lakh. And that's equal to 10 lakh. Can I write over here? It's 10 lakh 43,223. So if you are paying all the rents together today, rather paying 2 lakhs every year for 10 long years, you decided let me make the payment one shot of all the rents. So we say present value of rental outflows, all done today itself. You paid 10 lakh 43,223. Other option was purchasing the space at 12 lakhs. So this commercial space what you need comes to you either at 12 lakhs or it comes to you at 10 lakh 43,223. Everybody would love that. Why to buy 12 lakhs when I am getting the commercial space for the time what I needed at 10 lakh 43,000. So leasing has to be the option. The person has to rent it. He should go for renting the or leasing in the commercial space, not outright purchase. I think everybody understood, including the calculation also. Coming to the next sum, we are now moving into, as we can see, the sum talks about AP. 17 term find karna hai. It seems to be quite standard sum. 15 term is given to me. The 15 term is given to me as 30.5 and the 21st term is given to me as 39.5. Now just a small reminder, in AP the T2 is A plus D, the T3 is A plus 2D, because in AP you need to keep adding D as you move ahead. T4 will be A plus 3D, so everybody must be knowing T10 A plus 9D, 1D less than the term number. Actually I am applying A plus N minus 1D, but in our batches we quickly go directly. T20 pucha to we go A plus 19D, because everybody got it, it's 1D less than the term number. So T21 I'll be writing it as A plus 20D, which is equal to 39.5. And the next T15 will be A plus 14D, and that's equal to 30.5. So on subtracting I happen to get 6D, which is equal to 9. So D is equal to, it's going to be 9 divided by 6, and that's equal to 1.5. Story doesn't end over here. You need to put back your D to check your A. So A plus 20 into 1.5, and that's equal to 39.5. So A plus 30, which you can finish off on calc, 39.5. The A turned out 9.5. Now I got my A, I got my D. I am supposed to find the 17th term. So 17th term is going to be, as what I explained earlier, it's going to be A plus 16D, 1D less. So let's fix in 9.5 plus 16 into 1.5, and 16 into 1.5, that's equal to 24, and plus 9.5, that's equal to 33.5. So that's your option. Now sets, Venn diagram. Better go through the sum. Let me help you. In all 100 boys, 50 were wearing white shirts, 40 red shirts, 30 blue shirts, 20 were using white and red, 15 red and blue, 10 were using both blue and white. Find the boys using all three colors. So maybe it's pertaining to your three circle diagram. So I'll say the number of students in that, which is the union. So it's going to be, white or red or blue. Number of students, in that. Or maybe let me just go horizontal. This may be a bit confusing. So number of students wearing white or red or blue shirt. So in all, basically we are talking of that area.
It's equal to n of white plus red plus blue. So no, this circle plus this circle plus this circle minus the n of. While adding, let me say that this was white, red and blue. We all know that when we went for white plus red, we counted this area twice. No, which is nothing but W and red. This area was counted as a red and blue. Even that area was counted twice, which was no blue and white. So we need to remove once because they all were counted twice. So we remove white and red, red and blue, blue and white. Now coming back, can I just be more clear now? Okay. In doing so, this is people either know the formula or they take the reference of Venn diagram. When you went for W plus R plus B in the first one, you counted the center area, which is all three times. But followed by that, when you subtracted W and R, you subtracted R and B, you subtracted W and B, you removed that area three times. So initial in that you counted your center area, this area which we call no all three or white and red and blue. You counted it three times. When you subtracted this three, you subtracted the center area three times. So it's not counted at all. So you need to count it one more time. At least one time has to be included when you are talking of the whole thing, because even that's the part of the union. So n of W and R and B. Now let's fit in. So I had this block. White wearing people 50, then 40, then 30. Just check the figures please. Subtract 20 white and red, 15 blue and red, and 10 going white and blue. So we subtracted that. Plus the people or the students wearing all three colors ka shirts. But then I had thoda sa issue. I don't know that, I don't know this, I don't know this. How am I going to proceed? So I went back into the sum, reading once again. Not this much part was already incorporated in my calculation. I was bit worried from where can I get the union, because if they have asked me that as the question mark, then I should be knowing this to finish off the sum. I got it कि maybe they have missed out, but I need to take the 100 boys are in the union. Mane there is nobody outside. There is nobody outside. All 100 are in house in the union. So by presumption, which they were actually supposed to say in the sum, but as I have explained many times in my batches also, okay, they may miss out saying that. So if you feel okay, it should have been there, then you take the entire universe into your union part. Universe nahi hai. This itself is now the universe for you. All 100 in that. ऐसे भी shirts तो पहनते ही होगे. So now coming back, 100 is equal to therefore 90 plus 30, 120 minus 45 plus n of all three. Can I write all three? White and red and blue, all three. So that was 75, I am not wrong, 75, when I subtract over here, it's going to be 25. So 25 people or 25 students were wearing all types of shirts, all color shirts. So seemed to be quite simple, only thing we were discussing. But one wonderful point which came out of all this is what? Okay, initially 100 boys seemed to me like n of x, no? The sample space or the universe. But then lately when I started writing my formula and tried to fit in things, I found that 100 I need to presume they all are in the union and nobody is outside. Nobody is a student who is not wearing a shirt or some other color shirt apart from these three colors. So we have to take that assumption. Mostly sums mein diya hota hai, they missed out in this one. Now let me first clear the space before we go into the next one. So we have got good space for that. Now as you can all see a bit of it, let's start the next one.
it's permutation ka sum. But as you can see, the letters in corporation seem to be repeated. So these are arrangements of like items. So before I start, let me just brief you. Let us say okay, there were 6 no places which I need to fill with alphabets, and 2 alphabets out of that were A. So let us say the A occupied the second and the fourth place. If not 2 were A, let us say okay, 1 was B in that. So 2 were distinct letters. So they must have in the calculation incorporated 2 factorial arrangement of theirs, because AB can also be then arranged, or will surely will be arranged as BA also by swapping their places, which cannot be the case if they were 2 A's, because if both are A's, then there is no point swapping, because even when I swap the 2 A's, the word form will be the same only. So we are not supposed to include that, which already was included in the calculation as 2 factorial. So you need to remove from the answer the 2 factorial in case of 2 letters repeating, because when distinct they accounted their arrangement as 2 factorial in the answer, which now because they are like, they cannot rearrange amongst themselves. They may swap, but that doesn't make different words. So 2 factorial earlier incorporated has to be removed from the answer, so you have to divide by 2 factorial. This very well everybody must be knowing by the time you are attempting this paper as a practice towards your actual attempt. Now, which everybody has to. Our strong suggestion. That is why we all are taking efforts. Now, coming back, okay, I start with corporation. I need to count the letters. So it seems to be 11 letters. It talks about vowels. No, vowels always together. So let me accumulate the vowels. I have got O, 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 3 O's. Then A and then I. So I have got 5 vowels. So I need to have 6 consonants. Let me just count C, R, P. Then one more time R. Then T and N. Okay. So 6 consonants and I have got 5 vowels. Vowels need to be together all that time. So let's consider all 5 vowels as one set. So one set of 5 vowels and 6 consonant, that makes it 7 letters can be arranged in 7 factorial. But then in those 7 letters I saw these 2 R's, which must have incorporated its 2 factorial in 7 factorial, which has to be removed because now they are alike. So they cannot arrange in 2 factorial, which was already included in that answer. So we need to remove it. It's a part of theory which I just thought of briefing you going into the sum. Into now, तो आप बोलोगे into किस बात का? Now I had considered vowels as one set. Now I need to know open up those vowels. I see 5 vowels. So they will arrange amongst themselves in 5 factorial. 5 vowels in 5 places, 5 factorial. But then again in that the O's were 3. So they were taken as 3 distinct letters. So they must have accounted the 3 factorial arrangement which in the 5 factorial answer, which has to be removed then. So finally the answer goes 5040. So you are thinking 5040, 7 factorial. Now we always recommend students to remember at least up till 7 factorial. But those, let us say if not 7 factorial, I am very sure all the viewers out there 6 factorial तो याद रखा ही होता है 720, and then into 7 will take you to 7 factorial. Into 120 covers 5 factorial. Divide by 2, divide by 6 for 3 factorial. It turns out to be 50,400, which is there in option number D. Quite easy. Standard sums, vowels together, very common. But then you also need to be aware of what if the letters are like. So you need to remove those factorial elements, what they have already accounted while we had taken them as distinct letters. Hope my language is not hurting. Coming back, a simple mechanical sum on AP. The nth term given to me is 7n minus 2. I said okay, no issue. Then they asked me Sn. So I know Sn is n by 2 a plus l. See, everybody knows 2 set of formulas for Sn. One is n by 2 first plus last term,
or else n by 2 2a plus n minus 1d, which you happen to get when you change your last term as a plus n minus 1d, because last term is the nth term. Assuming there are n terms in the sequence, we always take as nth term as the last term. So in place of L, when you replace a plus n minus 1d, you happen to see your more common formula what you happen to use, n by 2. Let me put it, n by 2 2a plus n minus 1 into d. But I feel I can work with that. Let me check. Tn is 7n plus 7n minus 2. So I immediately jump to t1. So that is 7 into 1 minus 2, which is 5. Then I move to t2. 7 into 2 minus 2. So it's 14 minus 2 and it's going to be 10. So I saw the d is equal to plus 5. I have my a and I have my d. So I think I need to get started now. In fact, d was of not so great use because anyway I'm using the first formula. So you could have skipped your d finding. So only t1 would have sufficed. So moving to Sn, Sn is n by 2 a plus l. So a is 5 plus even the d is 5. And then it's no, d is I think so 14 minus 2. I made some mistake over here. Okay, let me make the correction. So that is 12. And therefore the d happens to go 7 in that. Okay, done. But anyway I'm not using d. So then how are we going to solve? I wrote my n by 2 a plus l. L is the last term. There are n terms in a sequence. So last term is the nth term. So that's ready for me, 7n minus 2. So even if I apply the second one, it turns out to be the same. N by 2, it's going to be 7n plus 3. So finally, as I can see in the answers, they have pushed n inside. So 7n square plus 3n. So I was left with half, which I'll write it as 0.5 because that's what I'm seeing in the options. So 0.5, 7n square plus 3n seems to be your option C. That is your answer for 7th number sum. Now, equations. Cubic equations. When you want to find roots of cubic equation, you all must be knowing you should know the first root, because then you find the remaining roots by synthetic division. So assuming you are well aware of that, how to find the first root? I could clearly see the sum of coefficients. No, it's 1 over here. So 1 minus 23 plus 142 minus 120. If you work out, it turns out 0. So you must be taught that if the sum of coefficients of the equation turn out 0, then x equal to 1 satisfies the equation. In fact, you can put your x1 in that and check. You happen to get the same thing. So x equal to 1 is the root of the equation because it is satisfying. So at least I got my first root. Now I can proceed for the synthetic division to find the remaining roots. Let's check it. Now that's the place of the root, the divisor. Here comes the dividend. So wherein we put the coefficients of the polynomial which I want to divide. So 1 minus 23, 142 minus 120. So let's start, assuming most of you are comfortable with synthetic. So we bring down 1, we multiply, we add. Then again we multiply, we add. Again we multiply, we add. The remainder slot, this is your remainder ka slot. If that turns out 0, that means everything what you have done is perfect. The root what you have found and with which you have divided, it's the correct root. It's the correct divisor. Comma, your division is correct, only then you happen to get to see the remainder 0. So now coming back to the factors, root 1 corresponds to that factor. And that's my quotient which gives me the other factors. As in like 36 ka one factor is 4 and somebody says get the other factor, you happen to divide. So the quotient becomes your second factor. So that's the quotient which is becoming your second factor. X square minus 22x plus 120. Easy to split because 120, immediately what I click, it's 1210. नहीं 30 and 4 भी click होता है, but 120 पे 12 and I see 22, I say it's God's grace. So we have got 10, we have got 12,
and then I put the sign because it's minus 22. Then I put my x to complete the factors, and now when I equate it to 0, I happen to get my roots as 1, 10 and 12, which is my first answer, first option. But I don't see any reason why student will not be so good with the synthetic division. That's the very quick and the easiest way to settle down your sum. Long divisions, of course, because we are out of touch, nobody happens to use long division. But can I talk something more on this? Okay, no, this solution is quite valid, and I would always approach in this way, the most authentic way of getting the roots. But there was a bit catch in this. You could have got the answer without using your pen at all. Maybe few of you may be knowing that. Let me help you. The sum of roots, which I call S, that is equal to minus b by a. Let it be cubic or let it be quadratic. Now I can see my a and b if I talk of only a and b. So minus of minus 23 upon 1. The b is minus 23 as we can see over here. A is 1. So sum of roots is going 23. Now in this options, you know all three roots. So check the sum of roots 23 where you happen to get. I see only in A. If you try with B, sum of root is not 23, neither in C nor in D. So only your A option में sum of roots 23 settles down, or you can say option A का roots are satisfying the S of my sum. So ultimately, directly the answer is A, option A. But some fine day just presume कि यहाँ पे none लिखा है. तो sum 23 I can get infinite combinations of three numbers whose sum is 23. They can always trick you in that. So genuineness, and that is quick fast. In fact, because we are discussing, it happens to take time. But if a student is solving at his good speed, I think 30 seconds, 40 seconds, synthetic takes hardly any time. Sum of coefficients, I can quickly see 143 minus 143 0. So 1 is always on the cards for me. Now moving to the next one, you all must have enjoyed method 2, but always remember, okay, what if there was one more set in this option, one more set whose sum of root was turning 23? Then again you will check for product of roots. So again you are spending that much time. So why not get it authentically? Now coming back to, this is indices, quite famous sum in the topic. It's there in the module also. So let's enjoy. First of all, when I look at that, I just strictly simply jump to, let's change all the base to 2. What will happen next, that is secondary. So 248 देख के तो लालच मन में आ ही जाता है. So I am going for 2 raised to x, 2 raised to 2y. I hope you got that. If I change my 4 to 2 square, and 8 to 2 cube will lead to that. Now since the base is same, we equate the powers. X is 2y equal to 3z. So let's focus on that. I related my three variables x, y, z. Now they are giving me next 1 upon 2x plus 1 upon 4y plus 1 upon 6z is 24 by 7. I said not an issue. It's given to me. I'm asked to find z ka value. If you're asked to find z ka value, then you are supposed to change your x and y to z. Don't see something else. Let's crack x and then find z. Even that's easy, fine. But if you want z, then try to bring in z in other variables. So now that was quite easy. The x was 3z. So 2x must be 6z. Check. Can I repeat? X was 3z. So 2x will be 6z. 2y is 3z. 2y is 3z. So 4y has to be 6z. So ultimately I have got 1 upon 6z plus 1 upon 6z plus 1 upon 6z. It's 24 by 7. So apple plus apple plus apple.
apple. It's 3 apple. So 3 upon 6z is equal to 24 by 7. So that's 2. On cross multiplying, z goes samne. Z will go here. 7 upon 2 into 24, that's going to be 7 by 48. I can see option number C. But coming to that area, check what I said. If I was supposed to find z, technically I was supposed to change the other variables to z. So my eyes were changing x and y to z. Changeover was quite easy. Because the x was 3z, the 2x was straight away 6z. The 2y was 3z, so the 4y had to be then 6z. So finally I can see 1 by 6z going 3 times. Easy way to reach to z. I hope you all are enjoying easy sums coming. Mane it's attempt ka sum. So with every passing sum, student gets that good boost. ये तो सम हमारा मॉड्यूल का है, हमारा किया हुआ है. And that is why this is one more good reason why a student has to appear before his attempt past papers at least 3 to 4, and those years ka MTPs also. So if you catch in 4 attempts also, each attempt will give you 3 sets, 2 mocks, series 1, series 2 and 1 attempt. So 12 papers, you get that immense boost. As if I always keep telling, if you are doing that, you would be excited. यार कल क्यों नहीं ले लेते एग्जाम यार. 12 में तो almost I found everything was covered, and now I am ready to go. Even after this writing this, I am ready to go to the my center and finish off the paper. Very optimistic approach, realistic approach. Optimistic नहीं है. Now solution of the inequality. Okay, inequality तो दिख ही रहा है. Let's see the solution. So 5 minus 2x upon 3 is less than equal to x upon 6 minus 5. So of course it's going to be cross multiply. So 5 minus 2x upon 3 is less than equal to x minus 30 upon 6. Anybody would do that. Next shot, that was very clear. Next is cross multiply. So 10 minus 4x less than x minus 30. Keep your x positive, because when you drop minus sign from both the sides, you have to change the inequality sign. So maybe in that fast moving process may exam pressure, hall pressure, attempt pressure, next one, you may just miss out. So avoid getting to minus x. So 4x I shift over here, 5x less than equal to, I have 30 over here in plus. So 10 plus 30 happens to go 40. So 8 is less than equal to x. But the correct way to read this is in this way. The x is greater than equal to 8, which seems to be the option number A. Now, effective rate ka sum. So just a second. Okay. By that time you must have read the sum. What is the effective rate of interest? When the principal amount of 50,000, the principal amount has got no role in effective rates. Effective rate ka formula is equal to what? 1 plus I the whole raised to n minus 1 and then into 100 to convert into percentage. Your answer ko. So there is no involvement of how much you are investing. The thing what is there in the formula, it's how many times, at what rate your money is compounding and how many times it is compounding in a year. So that gives you effective rate ka answer. But if you can allow me to talk a brief on that, I think in any of the MTBs also, when it comes, I may be discussing effective rate ka matlab kya hai. You may find it repeatedly, but then you can skip that discussion. What I'm going to do right now. What is effective rate? I put in 100 rupees in a scheme which is offering 10% interest per annum, compounded half yearly. So system is providing me 10% per annum, but interest accumulation will be done every 6 months at the rate of therefore 5%.
10% yearly, but compounding half yearly. So half yearly rate will be 5%. So let me say कि I have deposited 100 rupees. So at the end of 6 months, I'll get 5 rupees, which will be then added to my principal, and the principal will grow to 105. That's the whole fund of compounding. The interest accumulates to principal grows, and therefore the next time you happen to get more interest at the same rate of interest. So in the next 6 months, I'll be now getting 5% on that, which is 5.25, which leads to 110.25. So a layman would have thought कि 100 रुपया रखने पे 10% per annum year end में my money would have become 110. But effectively the money has become 110.25, not 110. So that 10.25 is called the effective rate. One single rate when applied gives you the same effect as it would have been in the case of compounding multiple times in the year. You still will reach to the same desk. माने 5% हाफ ईयरली बार बार दो, उसके बदले 10.25% वन शॉट दे दो, the outcome will be the same. So that 10.25 is called as equivalent rate to 10% half yearly compounding, equivalent to 10.25. So that's how we know we happen to use that formula, and the same concept is used in building this formula also. But coming back over here, now let's see the sum. मेरे को अमाउंट में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, because formula doesn't need the amount. In a nest for a year corresponding to a nominal rate of 8% compounded quarterly. Okay, so that comes to 2%. 8% compounded quarterly, so divide by 4 parts. So each quarter 2%. Let's hit it. So 1.02 raised to 4. Now 1.02 you understood, 2%. Raised to 4, it's always for a year. So in a year, if you are compounding your money quarterly, it's going to get compounded 4 times. Minus 1 into 100. Now I think so this value is given to you directly over here. So no calci ka use. 1.0824 minus 1 into 100. And then finally it's going to be 0.0824 into 100. Those not comfortable can use calci, but I don't think so. Anybody is not so comfortable doing this directly. 8.24%. So that's option number D for me. Now moving to the next one. Remember, time value of money on an average 13 to 16 sums. So it can always change the course. So this topic I always keep telling students to be very much ready all the time. Whenever given a set of 10 sums on time value of money, you are ready to do it, because few things are so clear in you. But that's only possible if intermittently you keep practicing such topics which do happen to decide the fate of your attempt. If you are looking for scores also, this topic is wonderful. Just gives you the good amount of boost. 270 282 हो जाता है, 282 280 वाला 292 दिखने लगता है. So that no थोड़ा सा push. Now coming back, Manoj is investing 12,000 at 6%. Simple interest. Okay. So he is putting 12,000 at the rate of 6% per annum. Simple interest to obtain an amount of 14. माने future value भी मालूम है. So in the case of simple interest, I think the maturity amount 14,880 happens how? You happen to get back your principal amount, of course. Now when you deposit something, you happen to get back that amount plus the interest on that, plus interest on 12,000, which is SI. So which is PNR upon 100. So 12,000 was your deposit, and I need to find, I think so, time for which it is invested, we have to find, into the rate which is 6 by 100. So सबसे पहले I need to subtract 12,000. I don't go for common. No, 12,000 I subtract. So 2880. And I am left with 12,000 into n into 6 upon 100. And if possible, you can get your 100 cut. So now finally 2880.
I need to divide by 120. I need to divide by 6. Need to divide by 120 and then further divide by 6, and I reach to my n 4 years. It's there in option number. So easy sum. You put in 12,000, it becomes 14,880, and it's all SI concept. So no, your final value 14,880. You make it how? You get back your 12,000 plus the interest on 12,000. That's how you happen to see your maturity value. So simple calculation. Now, Mr. X makes a deposit of 50,000 for 2.5 years. Okay. Rate of interest 12%. Compounded half yearly. So it's simple compounding का formula. Maturity value I am supposed to find. So I am supposed to apply A is equal to P 1 plus I raised to n. Simple compounding का formula. He is depositing 50,000. So initial deposit 50,000. 2.5 years. 12% half yearly. 12% per annum half yearly. So that goes 6%, which is 0.06. So then I need to go 1.06 raised to how many times? He has put in his money for 2.5 years, where his money is getting compounded every 6 months, every half year. So money will be getting compounded 5 times in a duration of 2.5 years. Now that value is given to me directly. So I'm going to use that 50,000 into 1.3382. So let's do it. 50,000 into 1.3382, and that turns out 66,910, and I can see that in option number A. Quite easy sum. Let's move to the next. Oh, infinite GP का sum. Infinite GP, तो I got it A upon, no, I'll write it S infinity is A upon 1 minus R. So वो याद कर लिए. First term is a common ratio. Okay, that's all. No, we all know it. Infinite geometric series. Sum is 4. So can I say A upon 1 minus R is 4? As I said, sum to infinity is given by that. So they said sum is 4. So I wrote directly the equation A upon 1 minus R is 4. Second term is 3 by 4. So we know in GP first term is A, and then to keep proceeding to all next terms we have to keep multiplying by R. So second term will be AR. So AR is equal to 3 by 4, second term. Now comes solving. But before that, let me just put this thing from my side. Since options are reading very clearly what's A and R, why don't you check one easy calculation of yours? Mane, going from options to the answer. Check which AR ka product gives you 3 by 4. So first one, no, because the product is 1 by 4. Second, 3 into 3 by 4, 9 by 4, even that is not satisfying my second condition. 3 into 1 by 4. 3 by 4, it is satisfying. 1 into 1 by 2, not. So basically I had no good reason of solving the sum. But then again I would say, what if the sum pops up once again in the coming attempt, and then there is one option, last one, which says none of the above. So then there is a fear that there is a possibility that none of the above ho sakta. Of course in that scenario also, if you get to see only one option satisfying the second condition, you can always put that in the first one. If it satisfies, then that's the ultimate answer. So even here also I would have done that. Baki there was no good reason for me to, because only one of them satisfies this. So of course for my second authentication of my answer, correct answer, I would have put 3 and 1 by 4 in that to get the answer. So that is, I think so, we need not talk about it. It seems like it is done, but I would like to solve it one more time, assuming the options were not that clear, or maybe they just asked me R, they didn't give me the options में A and R, so the sum was not that easy. So we are preparing for those kind of extreme things, not extreme things, but those alternate questions which would have forced us to solve this, by solving the equation. Now how do we go about with that? Okay, what I can do is I can write my R as 3 by 4A.
school time stuff, substitution, and I push it over here. So a upon 1 minus 3 by 4a is equal to 4. Now on cross multiply, I see a upon 4a minus 3, and then in the LCM 4a, let me flip it up and make it 4a square. 4a into a, it's equal to 4. I got my 4 cut, but then I have 1 over here. So cross multiply and I am seeing a square is equal to 4a minus 3. So shifting all terms over here, I saw the quadratic a square minus 4a plus 3 equal to 0. Plus 3 ka factors I can see only 3 and 1. Best I can see 3 and 1, nothing more. I put in my sign, minus minus. I put in a to complete the factors. And then when I equate to 0, I get my a3 and a1. With a3, I am supposed to find my r. So if I put 3 over here, 3 gets cut, the r is 1 by 4. And what if I put my 1 over here? The r is 3 by 4. So I can see that's the option which we have got, a3 and r 1 by 4. Option number C is the answer. 1 and 3 by 4 is also there, but 1 and 3 by 4 I cannot see in any of my options running over here. So option C. I would always suggest students to be good with the solving also. So if you haven't followed it, let me just brief you once again, only a small part, not the full sum. When I decided of solving the sum, solving the equations, what was the approach? School approach. I wrote my r as 3 by 4a and I put it over here. Then I think so it's quite a easy move. Even the quadratic what I got was simple because 3 ka factors nobody can think apart from 3 1 because there is no other set of factors. 3 1 by I put my sign and I come to my a3 a1. You push back your a over here to get your r and you see only that set amongst the option number C. Now comes integration. I would not say easy takeaway sum tha, because integration few just follow formula type sums and those थोड़ा सा हिम्मत करके substitution में भी those who go they can do real good wonders. I would again suggest spend some time in that topic because 2 or 3 sums we never know in other topics which we are presuming I'll be solving all the sums. Let me share with you, it doesn't turn out every time the same way. And what if your colleague comes out after completing the attempt and says, oh, integration derivatives ke to take away for free sums the. So your 1 or 2 days ka good efforts in a 6 months long course, 1 or 2 days ka serious good efforts and you can make it. It's all simple algebra. So there is no good reason ke I will not do integration or derivatives because I have not done at my earlier level or my other batchmates had done it so I could not. No. रीजनिंग माँ थोड़ी बाजू में आप लिख के आ सकते हैं सम के बाजू में. गिव मी द ऑल्टरनेट क्वेश्चन. आई एम नॉट अ मैथ स्टूडेंट ऑफ 11th-12th. No. You are going to give the attempt. It has asked you the question, you have to attempt it. And believe me, it's easy. Chalo, let's work it out. Now before I jump into this sum, are we in a position to mane basic integration? How if you integrate root x? Or how we are going to integrate root x? First of all that. I tend to make it x raised to half because I do not have direct integration of root x. So I make it x raised to half. And then I can play on that x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here I am going to play x raised to half plus 1 upon half plus 1. Of course plus some constant k. So it turns out x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. This has got nothing to do with the sum. ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर मैं बताया नहीं होता. If I have done it, that means I am eyeing something very much similar to what I am seeing in the sum. Now, when I look at this sum,
Okay, so when I am looking at this part, root of x square plus 4, what I thought was, what if I integrate root t? That is easy for me to integrate. But then if it is root t, you need dt, because a t ka function can be integrated with respect to any function, and t has to be integrated with respect to t. So I needed dt. So I said, okay, what I have done, if I am integrating root t, that means I have taken t as x square plus 4. So my dt is going to be 2x dx. In fact, it was dt by dx, and then dx goes over here. So for dt to come into my integration, I need to have in the sum 2x dx. I said I already have x with me. Just check. What if I put 2 and half? Then 2x along with dx becomes dt for me. And of course I have got half outside. Now I am with a comfortable sum. So if you have missed out, let's check in one more time. Let me try one more time. Do not rewind play, please. What was the approach? Okay. I said when I look at root, I am capable of integrating root t. But to integrate root t, I need dt. So I started. T कौन है भाई? X square plus 4 as per my substitution. So then dt by dx has to be 2x, and dx I bring it over here. So I saw 2x dx of my sum will become dt. I said I have x, so let me insert 2 and half. 2x dx becomes dt with half spread outside, and rest was root t, what I had planned earlier. Now it will be half integrating t raised to half, as I have explained earlier over here, dt. So if I play n plus 1, it will be 3 by 2, 3 by 2 plus constant, which you are not supposed to. I'll just tell you in a minute to go. When I flip this, it's going to be 2 by 3. So 2 gets cut. Answer is t root t upon 3. Now you may see कि t root t क्या लिखा है? T raised to 3 by 2. The power 3 by 2, I take it as 1 and half. It's 3 by 2, 1.5. So when I distribute the power, I have got 1t and half t. I have got 1t and half t. So I wrote t root t. But then I had to put the limits, which are x ka limit. So I have to resubstitute. No, few happen to find the new limit. So can I just remove this part to make it now it's solved, so we can focus. I was talking about we have to put in limits, no? But they go in x ka place. So let's resubstitute. So finally I have got x square plus 4, resubstituting, root of x square plus 4 upon 3. And this needs to be taken from 0 to 1. So I said, okay, I have got 3 residing in the denominator. Now this box will take care of upper limit, and this box will take care of lower limit. So when I push my 1, it's 5 root 5. Please check when you push your 1 here and here. When you push your 0, it's going to be 4 root 4. 4 root 4, root 4 is 2. 4 into 2, it's 8. So it's 5 root 5 minus 8 upon 3. And I can see the first option. 5 root 5 minus 8 and upon 3. So 1 by 3 basically. I hope quite easy. You need to practice few sums of this type. They do happen to ask you a bit of substitution. The idea is somebody in the class does happen to say, आपने कैसे सोचा रूट टी? मैं बोला मैं सोचा नहीं है, मेरे को रूट टी इंटीग्रेशन आता है और ये दिखता रूट टी जैसा है. This looks like root t. So I said, being optimistic, let me try root t. But root t demanded something more. It wanted dt. So I said, who will become dt? Then I figured it out. An easy solving, root t, t raised to half, we play t raised to n plus 1 upon n plus 1. So the whole story. Now
combination, standard sum. You happen to see these sums in MTPs also, same sums. So now 15C3R is equal to 15CR plus 3. So I first equated 3R to that. I was positive, so I said let me try that. So 2R, if I subtract R on this side, will be 3. The R is 3 by 2. I can't take that. R has to be integral. What if somebody says out of 5 members, select 2.5 members for a committee? You can't. This number, the selection, has to be integral. So 3R or R for that matter had to be integral. So now, coming back, equating straight away did not help me. So what I do is, 15C3R, I write 15C, 15 minus 3R. I'll take a small chance over here. What did I do? 15C3R, I am writing 15C, 15 minus 3R. My logic behind that, or I think everybody's concept behind that is what? 15C3R mein you are selecting 3R items out of 15. That means you are rejecting the balance 15 minus 3R items. Even that needs to be the same. The number of ways of doing that is as good as if I keep very simple in your words. This is a normal practice which always everybody happens to do in combination. 5C3, I think everybody makes it 5C2. What's the funda behind it? You are selecting 3 out of 5. So at the same time you are rejecting 2 out of 5. So number of selections of 3 out of 5 have to be equal to number of rejection of 2 out of 5. Then why not 5C2? Similarly, you are selecting 3R out of 15. That means you are rejecting the balance 15 minus 3R. It has to be equal. So now that's equal to 15CR plus 3, the RHS. Now I'll equate this. I tried equating this. I did not get R good value. So now I am trying my second attempt. 15 minus 3R is equal to R plus 3. Shifting 3R, it's 4R. Subtracting 3, it's 12. The R has turned out 3. That's your option. Now, simple I think so ratio ka sum mein can be solved by even 7th ka student. Divide 27 into 2 parts. So let 27 be divided into 2 parts, x and 27 minus x. I have seen few students maybe in thoda sa haphazard attempt or half-hearted or quick attempt. One is x and other is x minus 27. Oh gosh, screwed up your solution. 27 ka one part is x, the balance 27 minus x is the other part, not x minus 27. Now what's the equation? What's the statement they are giving me? Condition. 5 times the first and 11 times the second. 5 times the first and 11 times the second. Put together. Okay, when I said and I wrote plus, you may be thinking plus kaise kar liya. 5 times the first and 11 times the second together. So I said plus, and that's equal to 195. So let's go quick. 5x plus 11 into 27, that's 297. Minus 11x is 195. So that is 297 minus 6x is 195. So 195 when I subtract over here, so minus 195, that's 102. 6x on the other side, so divide by 6, so x is 17. So one part is 17 and the other part is 10. So the ratio of two parts happen to go 17 to 10. That's your option number A. Okay, I think God's grace. Maybe you have taken such good efforts that God wants to give you bonus right now, immediately. Find solution to this two equation. So solve. Few they put x and y in that to check who satisfies. Answer both quick and fast. So if I am solving 2x minus 4 and 3x plus 4y is 17. So I decide to multiply the first equation by 4. So that's going to be 8x
minus 4y is 16, and I have got 3x plus 4y equal to 17. So we need to add. So 11x is equal to 33. The x goes 3. You put your x over here. So it's going to be 9 plus 4y equal to 17. The 4y is equal to 8. The y is equal to 2. So 3 comma 2 is your answer. You would have been really fortunate if you would have tried your options, because the first option itself satisfies both the equation. You can try right now also. Put 3 and 2 in that. 6 minus 2, 4. Okay, satisfies first. Put 3 and 2 in that. So 3 into 3 plus 4 into 2. 9 plus 8, 17, and RHS is also 17. So x and y values satisfying both the equation, you were quite why I always do that. What if the option D was satisfying? That means you played your ABC two times in the solution to get to right answer, and then you found the option D satisfied. Maybe it's also quite possible that you were in so much of hurry because maybe you are losing some time, or you lost some more time in the earlier sums which you are not supposed to, which is a very common phenomena when you sit for exams, and that's one more reason why you should be writing lot many MTPs and previous attempt papers at home. Clock. Maybe you can take a break. Press the clock. Stop it. Check. I think in 2-3 MTPs you'll get used to finishing off in time. Comma, your curiosity also increases. Now, lot many benefits. अच्छे काम के लिए वजह नहीं चाहिए, वजह अच्छा काम. That is enough to get your job done or to do your job. Now, coming to the next one, simple indices का sum. सर आप तो देखने से पहले ही इंडेक्स बोल देते हो सिंपल है, टॉपिक का नाम देख के. नो 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 नो, आई हैव गॉट n number of sums and indices which student even today if they sit down, so they have to scratch a head a bit before they finish off, no, or before they start the solution. ये मैं देखते के सम में 9, 3, 27, 3, 81 सामने 27, I said let's make all 3. So just a glance and I knew what is the first step. So 3 raised to 2n for the 9. I wrote 3 square. So no powers gel. Into 3 raised to 5 as it is. Into 3 raised to 15. Sir 15 कहाँ से? 27 raised to 5. I would have thought of 3 cube whole 5. Check 15. Similarly down 1. 3 raised to 1 into then 81. 81 is 3 raised to 4. And we had one more 4 in the power. I am really sorry. So it's 3 raised to 16. And that's equal to 3 cube. Y27 also needs to be spared. Now finally 3 raised to 2n plus 5 plus 15. Law of indices. A raised to m, a raised to m, a raised to n, a raised to m plus n. Upon 3 raised to 17, once again the same, 1 plus 16, 3 cube. So finally I am left with 3 raised to 2n plus 20 minus 17, and that's equal to 3 cube. 17 in the numerator, the powers then happen to get subtracted. Simple rules, a raised to m upon a raised to n, it's finally a raised to m minus n. So then I am left with 3 raised to 2n plus 3, and samne 3 raised to 3. So equating the powers because the base is same. So 2n plus 3 is equal to 3. 2n is equal to 0. The n is equal to 0. N ka value it's 0. Maybe thoda sa it just got no thoda sa the steps just went haywire from here and there, lack of space. But that's how your approach will be all the time. I will not speak more on that because the instructions happen to say that you are supposed to work all the solutions on the last page. Only the last page is blank. One page, 100 times you move back. Let us say 10, 15 or 20 you did it orally. Few were
a type of objective, no, from your, what do you say, theory part. But rest 80 times you went back forward with your calcs, of course. No, that's max I can speak. Pencils play wonders. Now coming back, it was 3 raised to, let me try to now fit it, 3 raised to 2n plus 20, and I've got 3 raised to 17, samne 3 cube. So I move this 17 up, so it's going to be then 3 raised to 2n plus 3, 20 minus 17 equal to 3 raised to 3. Now because the base is same, I can equate the powers. So 2n plus 3 was 3, the 2n happens to go 0, and therefore the n happens to go 0. So again quite a simple sum. Again a cubic equation. Again the sum of coefficients 1 plus 1 minus 1 0. If you see the coefficients, sum of coefficients turn out 0. So x equal to 1 is one of the roots, and to find the other root I'll be dividing the equation by my first factor, x equal to 1, or first root. But then if you see, check the module. There are few sums which need to be tackled by synthetic to find the other roots. Few can be done directly by a school method, taking common. So let me start. X cube plus x square minus x minus 1. I thought of going common x square. So x plus 1 minus 1 common x plus 1. So then again x plus 1 common x square minus 1, and x square minus 1 can be further factorized, a plus b, a minus b. So x plus 1 x minus 1, all when equated to 0 successively, they turn up giving me roots minus 1, 1. So I can see the first one, minus 1, and 1. So sometimes it's like how you approach your module. Module may you have got around 7 to 8 questions of this way, which happen with simple factorization techniques of your school. This is something what we do in school, taking common. Now coming to the next one, what will be the future value of annuity? So we have in this attempt quite good number of sums of future value. Of annuity of 2500 made annually for 12 years. Okay, 2500 is the annuity installment made every year for 12 years, and you are supposed to find the future value. So why to waste time? Future value is equal to the annuity what you pay regularly every year into 1 plus I, the whole raised to n minus 1 upon I. Did I forget reading something more? Something more in the sense, okay, maybe when I was quick I just missed out reading, okay, did he start today? No, it's not like that. It's ordinary annuity. So coming back, annuity size was 2500, rate is 5%, so 1.05, and is going to make the payments for 12 years. So 12 times minus 1 upon 0.05 for I. Now 1.05 raised to 12, that means this value is given to you. So why not use it? Why to do the calculation? 1.7958 minus 1 upon 0.05. So let's work out. Okay. So 1.7958 minus 1 divided by 0.05 into 2500, and that results into final value or the future value 39,790. So you keep investing 2500 every year, 12 years can may you happen to get a handsome value of 39,790. Let's move next sum. I say 12 to 15 or 13 to 16 sums always. It ranges always 13 to 16 sums mein. Time value of money. It's a big deal. And check the ease what we are solving the sums. Okay, if the initial investment of rupees 4 lakh becomes 6 lakh, माने वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सो डोंट नो बिकॉज आफ्टर प्रीवियस सम हमारा वो सेल सब एन्यूटी का वो सोच में रहता है. So some annuity name, but we thought of annuity.
Investment of 4 lakh, one investment becomes 6 lakh in 24 months. What is the compound annual growth rate? So 24 months should be taken as 2 years because we are talking yearly. Annual growth rate R find karna, I. So let's start. The A is equal to P, compounding का formula 1 plus I raised to N. Okay, final value was 6 lakh. Initial deposit was 4 lakh. Rate of interest is something what I need to find. So 1 plus I don't know. Raised to 2, it's not 24. We are going yearly because compound annual growth rate ढूंढना है. So annually the money will be compounding. So 1 plus I ka square. So I go for first of all 6 divided by 4. 1.5 is equal to 1 plus I ka whole square. Then I go square rooting. So I will go square rooting. So 1.2247 is 1 plus I. Then I subtract I, which I can do orally. 0.2247 is my I. So finally I has 100 absorbed in it. So if we release the 100, the percentage is 22.47%. So I can see the closest answer is B, 22.4. Easy sum. Square rooting lekin, yeah, anybody can manage. If Mrs. X invest in an annuity immediate, okay, that extra 1 plus I, that promises annual payments of 50,000 for next 16 years. Oh, you have to understand this. Mane, you may take it the other way. Okay, Miss X is going to invest 50,000 for next 16 years. No, no, no. She has to deposit an amount today. And then she will get back 50,000 for next 16 years. Yearly payments, annual payments. So it's present value. So before reading that, I had realized that this is a present value ka sum. How much X has to put in money today, which will support her annually by 50,000 ka payment to her for 16 years. So let's start. The present value is equal to the installment, what somebody wants back. So 1 minus 1 plus I the whole raised to minus n upon I. And we should not forget annuity immediate. It has to start from today. So she will start receiving payment from today into 1 plus I. So let's get into that. 50,000 is what X wants back every year. So installment size is 15. We can say receipt, what she happens to get back every year, 50,000. 1 minus, okay, rate of interest is 6% annually, so 1.06, and it's going to happen for 16 years, so minus 16 upon 0.06, and then because it is immediate into 1.06. Now they gave me 1.06 raised to 16 ka value. So a part of my efforts was taken care by the question itself. So that's the value what they have given me. But this is 1.06 raised to 16. And what we need is minus 16. So we all know what to do. You will be going for divide equal to. I'll be going for 1 by x. We got the same. Subtract 1 minus because it's reverse subtraction. Next, press plus minus. Divide by 0.06 into 1.06 and into what I want back every year, 50,000. So that means 5,35,612. 5,35,612, option D. X has to deposit this amount today, and then she can expect the system to pay her back 50,000 every year, year end for 16 long years. Going to the next one. Oh, sets ka simple sum. Let's not talk now. So A union B cross. There is nothing much to talk about in this kind of sums. Okay, we want to go for union of A and B. So unifying means bringing all the elements into one set. So I've got 1, 2, 3, 4. Can't repeat 2 times. Into
it's cross, it's a cross product of A intersection B. Intersection means common between your 2, 4, 1, 2, 3, that's only 2. Now this set needs to be crossed with this set. So every element will be mapped to 2, all elements. So the set is going to be now 1 comma 2, the mappings. 2 will be mapped to 2, the 3 will be mapped to 2, and even the 4 will be mapped to 2. So it's 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. That's the option. Moving to next one. Okay, wonderful sum. Sum of that terms. I saw 6, I saw 6. It's AP. So Sn is given to me as 225. So I started. Sn is 225. So n by 2, 2a plus n minus 1d. Sir, in one of the sums earlier you said your favorite was a plus l. Only if my last term is known to me, which is not right now. X is something which is not known to me. So n by 2, 2a plus n minus 1d is 225. Let me fit in the n by 2. A is 1, so 2 plus n minus 1, the difference is 6, 225. So if you work out the bracket, it's going to be 2 plus 6n minus 6 is going to be n by 2, 6n minus 4. And then again 2 common from the bracket, so it's 3n minus 2. 2 gets cut, so finally I'm left with n into 3n minus 2, which is 225. If I open the bracket, it's going to be ugly, because then it's going to be 3n square minus 2n minus 225. Gosh, I just feel like not looking at that. So what is the approach? No, you may see, sir, let's put the option. No, the option is x, not n. X is the term and n was the term number. It's of course the term number of that term x. Because let us say this is 17 term, my n turns out 17. Let us say, for example. That means the 17 term was x. So I have to find the x in that. Now finding the terms n. No help from the option because these options are x ka values. How to find? Inspection. 225, let's break it. 15, 15. I can't because the two are not same. N and 3 n minus 2. I go 3, 5, 3, 5. So I saw 9 and 25. 9 and 25. Even that's leading to 225. What if I put 9 over here? Is the inside bracket becoming 25? Yes. When you put 9, the inside bracket is becoming 25. I saw my n is 9. So this is one approach. What we happen to learn during the topic of equations. How to get the roots at the earliest in the easiest form. So we learn some offbeat tricks of getting to roots. One of them was this inspection. Just by breaking samne ka thing into two numbers which happens to fit into this form. 15, 15 not possible. So I went for chopping of 15s. 3, 5, 3, 5. Then I saw 9 and 25 in that. 9 when goes in n, the bracket becomes 25. Now that was good for me. So n is 9. So there are 9 terms in all. So that means your x is the 9th term. So if somebody says get x, that means get the 9th term, which is a plus 8d. A is 1, d is 6, 48 plus 1, 49 is your answer. So first mistake what student happens to do is he reaches to that n 3n minus 2. That's a quite clear process, anybody would have worked out quickly. But then equating that to 225, he would have made a real ragda out of that. Sorry for the word ragda. But screwed up. Going for quadratic, reading 3n square minus 2n minus 225. My goodness. It takes whole life to master this kind of equations. How to find roots. So rather you could have done it in an easy way.
Your product of two terms leading to 225. Try to break 225 into two terms ka product which happens to fit into that. Now that I think you got it. When you try with few more sums in this way, you may get the hang of it. Moving to the next sum. Now 60 derivatives. Quite easy. Let's start. It's implicit. So we start 3x square. Y cube will go 3y square and then into derivative of y. Because it's y cube. So then y also needs to be derivated. So it's like, let us say you are differentiating x plus 3 the whole raised to 5. You take it as x. You go for 5 blah 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 4. Having done with that, you then take the derivative of this also. फिर आपको अंदर का भी derivative. Same way for y cube also, you go 3y square and then you need to go for y का derivative. Now I think everybody, those who have done derivative, must be knowing that. Sorry. It's followed by then minus. Okay, in 3a xy I keep 3a common and xy demands a product rule. Xy demands a product rule. So x into derivative of y plus y into derivative of x, which is 1. Product rule. Now that was equal to 0. Because I saw 0, I just got quickly on this, dividing throughout by 3. Now I collect my dy cut terms. I mean to say dy by dx cut terms. So I have got y square over here. Then I have got minus ax. Check please. Plus I collect the other terms, which is x square and minus ay, if it's clear. Now when you open the bracket, it's going to be minus ay. So finally I shift that bracket on that side, minus of x square minus ay. If I push the full bracket, divide by that term going down, y square minus ax. So pushing my minus inside, it's going to be then ay minus x square upon y square minus ax. I can see the first answer. Can we check it? Ay minus x square, yes. And then y square minus ax, yes. So option number A is your answer. Now coming back, a very simple sum. NP2 is 72. In your NPR calculations, at times in sums, you hardly happen to use the formula of NPR. Now let us say 7p2. So people work out 7,6. 5p2, people work out 5,4. They don't apply 5 factorial upon 5 minus 2 factorial. So in NP2, why should we also go for applying formula? We go nn minus 1. 72. Now 72 you need to write. Now this is the same thing what we were discussing earlier in that equation wala 225 wala stuff. 72 if you can break into two numbers in product with a gap of 1, because this is a gap of 1. 98. 72. I can straight away take my n as 9. So n was 9. Quick, fast. Yeah, people do happen to make mistakes at time 8 comma 9. Now that's not allowed. Sir, how? 9 into 8 72, 8 into 9 be 72. So it was my wish. No. When you wrote n minus 1, you were in the descending form. And when you want to compare the two sides, the form of writing of two sides have to be the same. So even सामने की तरफ we'll have to write in the descending form with the bigger one starting and followed by one less. Only then you can say I'll compare the two sides. Okay. Move to the next one. Oh gosh, surds. Surds ka solving in a thoda it takes. Man, I would suggest ke if you are going through MTPs and then at times you saw ke surds ke good questions they happen to ask you, which needs a good kind of working. So to generate speed, you should know keep solving those sums again and again. Or maybe you sit down when you solve that particular set of 3-4 sums on surds. You don't happen to see quite good many sums on that in module, but at least there are few. So repeat solving that. Or when you see a similar sum in your periodic test, or collect it, attach it to your book. कि ये भी extra sums है which I can practice, because it needs some kind of solving, some amount of solving. Time being a big constraint. How to overcome? If no shortcuts, go quick in solving. Speed. Now
x is root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3. So I would immediately go for rationalize. It should be then root 5 plus root 3 upon root 5 plus root 3. Conjugates. So then the denominator is a square minus b square. And numerator turns out to be root 5 plus root 3 ka whole square. Which if I play a plus b the whole square ka formula, a square plus b square plus 2ab will become 15, because root 5 into root 3 it becomes root 15 upon 2. So finally the x is going 8 plus 2 root 15 upon 2. So my x is going 4 plus root 15 if I divide by 2. Similarly, the y would have gone 4 minus root 15. Now this is something what you need to learn while solving. Okay, y was just the other side of x, the reciprocal of x. So without doing any treatment on y, just looking at x ka simplified version, you can write y ka version, because root 5 minus root 3 is in the numerator. So then the answer will turn out to be 4 minus root 15. Now I'll finish off two things, x plus y, which is 8, and xy, which is 1. The two big giants when I am solving that, because quite good number of topics have taught me how to deal with x square plus y square. X plus y the whole square minus 2xy. Alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta leaves me with alpha square plus beta square. So I would always go by S and P, no, sum and product. Now let's get back to what was asked. So if I can borrow some space over here. Sir, xy1 कैसे आ गया? You may be thinking I played a square minus b square. Okay, even that was good. But x into y, they are reciprocals of each other. When you take the product, it is 1. So it was always on the cards before I started कि xy तो 1 ही है. Now still many are figuring कि ये x plus y क्यों find किया है. Let's see. If I cross multiply what was asked to me, it's going to be x square plus y square upon xy the whole square. Okay, x square y square xy the whole square. X square plus y square is something what I was telling you. Okay, we have been dealing at multiple places, even in equations. वहाँ alpha square plus beta square होता है. Easy way to get that is, if you do not have good x and y, it's to more convenient to get it in this way. X plus y the whole square minus 2xy leaves you with x square plus y square upon xy the whole square. So finally putting the value 64 minus 2 upon 1, the answer is 62. Check please. It needed a planning. Mane looking at that, I knew I'll be dealing with on cross multiply x square plus y square. So it was on the back of my mind because it sounded like alpha square plus beta square. What if alpha beta is not with me? Then I go by alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. So I had that in mind. No S and P. Sum of x and y, product of x and y. I got to x, I got to y. The very first good thing what I finish off is S and P. And then get into my business. Quick value आ जाती है. Now moving to next. Oh, आ गया वापस. It is not alpha square plus beta square, but this time it is alpha cube plus beta cube. Okay. Before I strike my solution, alpha plus beta the whole cube, which is actually a plus b the whole cube, it's going to be alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta alpha plus beta. Okay, I don't need that because I was not asked alpha cube plus alpha plus beta the whole cube. They've asked me to solve for alpha cube plus beta cube. Now my preliminary steps. I see my a going 1, b going minus 4, c going 1. Can I repeat? A is 1, as you can see, 1x square, b is minus 4 and c is 1. Okay, सबसे पहले we finish off alpha plus beta minus b by a. So that's going to be, if I can just keep the values ready, a is 1, b is minus 4 and c is 1. It's going to be 4.
when you push in b minus 4. Alpha beta, it's equal to c by a, so that's equal to 1 by 1, so that's going to be equal to 1. Now when they ask me to find alpha cube plus beta cube, I'll be going alpha plus beta the whole cube. But then we all do understand in alpha plus beta the whole cube, we do happen to get alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta, alpha plus beta. But then I just needed this, so I need to get rid of that. So I say minus 3 alpha beta, alpha plus beta. So few have made that notes, at their study place. It's a formula list. But if you know the constructive way of writing the formula, nothing better than that. Alpha plus beta the whole cube, many of them remember because it is heavily used in indices. A plus b the whole cube. A cube plus b cube plus 3ab, a plus b. And what if you need only a cube plus b cube? You need to minus that much part. So I did that. Now coming back, putting the values, I think the sum is over. Most of you must have gone for the next sum also. But let me finish off. I have 4 coming in over here, 64 minus 3 into 1 into 4. So that's 64 minus 12, which turns out to be equal to 52 is your option number D. So now, simple quick sum. Company should recruit more than or equal to 10 employees. So while recruitment, they have to take care that they take in at least 10 employees. Either equal to or more than 10 employees at a time. It's recruiting X experience and Y freshers. So total recruitment is going X plus Y, and it has to recruit either 10 or more than 10. And because X and Y are the employees what you are recruiting, they can't be negative. So X needs to be positive, even the Y needs to be positive or 0. So I think the answer is very quick on that. It's that option number B. Now, machine is costing 1 lakh, has a useful life of 10 years. Depreciation rate is 12%. What will be its value at the end of life? Or you can say what is the scrap value. So now in depreciation we happen to use V is equal to P1 minus I because it's depreciation. Your money is not appreciating, it's depreciating. So we don't say 1 plus I, it's 1 minus I raised to n. V is the value of the machine after n years, assuming depreciation happens annually only. So value of machine at the end of n years. What is the P? Initial investment, purchase value of machine. So why not, let's start. The costing of machine, the purchase value was 1 lakh. It was depreciating at the rate of 12%. So 1 minus 0.12 the I. And 10 years ka depreciation. So it's going to be 1 lakh into 0.88 raised to 10, whose value is given to me as 0.27850. So 1 lakh into 0.27850. So that's going to be 27,850. That's the value of the machine at the end of 10 years. So when you sell the machine at the end of 10 years, you are expecting that amount to be realized. So we often happen to say this is also the scrap value of machine, if you at all happen to scrap the machine at the end of the life of machine, which normally is the cost. Option number C, 27,850 is the value of the machine at the end of 10 years, which can also be called as scrap value. Coming to the next sum, compute the CI. Okay, simple CI ka sum, it's initial deposit 1 plus I raised to n, but that will be the amount on maturity. So minus the initial deposit P. So if I keep my P common, it's going to be 1 plus I the whole raised to n minus 1. A bit of explanation. People happen to go for that direct. वो सब memorize किया. मैं बोला कि if you keep a subject along with you, you can attach many more formulas along with that one. Why should I remember amount and CI का formula,
differently? Why it should be reading two different lines in my chits attached on the softboard in my study place? No. I am happy with A is equal to P into 1 plus I raised to N. Subtract P, keep P common, I'll get my CI. So coming back, 6000 was the deposit. 8% quarterly, so 8% per quarter, it's going to be 2%. So it's going to be 1.02. But for how many times? Your money was there in the system for 1/4 of a year. So 1 year has got 4 quarters plus one more quarter plus one more quarter. So 5 quarters minus 1. Now they haven't helped me with the value. So no problem. We are comfortable with all this. 1.02 into equal to, that's square, 345. So it's going to be, why should I can finish off the calculation over there only. So minus 1, that finishes off that, into 6000. So 624.48. 624.48 is your CI accumulated. Now, population of a city increases at the rate of 5% every year. So whatever is the population at the end of the year or beginning of the next year, uska 5% will be the increment of the population in that year. So it's again compounding. What will be the population city in the year 2023? If the population in 2021 was 1 lakh. So initial population 1 lakh, 2 years down the line population will be how much? At the rate of growth of 5%. So again let's apply the final population. Will be P, the initial population, into 1 plus I raised to N. Okay, initial population was 1 lakh. Population was growing at 5%. Okay, so 1.05. We wanted at the end of 2 years. So raised to 2, 21 to 23. So again easy. 1.05 into equal to, I am done with square, into 1 lakh, and that's equal to 11025. So 1,10,250, it's your answer. The population at the end of year 2023. Mr. XYZ invested 60,000 in a bank. Fixed deposit at a rate of 7.5% SI. Okay. He received, oh my god. Sir, oh my god. Same sum ऊपर भी गया है earlier. In the first 5 sums, I saw similar type of sum. SI pay the final amount. So you get 73,500 on maturity. On maturity, you happen to get your principal amount, which was 60,000, plus interest on 60,000. 60,000 and period. Oh, I think so even in that sum it was period. So I think two same sums. Very difficult, but it has happened. This is December 2023. नो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार इतने ये पेपर हमारा होता तो वी कांट चेंज द बर्थ डेट्स. रीबूट थोड़ी हो सकता है. होता तो यार संसार बहुत बढ़िया होता. गलती करके रीबूट हो जाओ. इनटू द नंबर ऑफ इयर्स into 7.5. नहीं मैं एक halt लिया because I was trying to check in what mistakes many I have done in the classroom, of the classroom. So मैं reboot होके क्या क्या कर सकता था. But फिलहाल coming back to the sum, subtract. Okay, that's going to be 13,500 and that's equal to 60,000, which I can get rid of the 100 manually. So it turns out to be exactly the same. So finally I can see 13,500 to be divided by 60 to be 600, sorry, to be divided by 7.5. So 13,500 to be divided by 600 and to be divided by 7.5. That gives me n equal to 3 years. So I think two same sums, exactly the same, in the same attempt. Calculate the present value of 2000 to be required after 10 years.
So 2000 is not the present value. You need 2000 after 10 years, compounding annually. So how much you have to deposit today. So it's not annuity ka sum. See, nowhere you can read regular payments or how much you have to invest regularly. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. You want 2000 at the end of 10 years, you pay how much today. So let me pay P today. Let it compound 1 plus I raised to n and become my final amount A, which is 2000, which I want 2000 at the end of 10 years. How much I need to deposit today? P. Compounding 1.05, I mean to say 5%. 10 years down the line, that value is given to me, and that's 1.62889. So finally 2000 divided by 1.62889, and that's equal to 1227.82. So 1227.82, that's the amount you need to deposit today, only one time, and stay 10 years. When you wake up, you happen to see okay, you got 2000 rupees or your money has become 2000. Now simple derivative ka sum, parametric functions. I have designed it. The dy by dx, I will get it by dy by dt upon dx by dt. Simple reason, y is a function of t, so you can go max dy by dt. X being a function of t, you go for dx by dt. And when you reciprocate, you happen to get dy by dx. So let's fit the answer. Dy by dt will be 40, 1 will go 0. And dx by dt will be 10t and 3 will go 0. T goes cut and we are left with 2 by 5, option number D. Now sets. What if I have a set, a very small set 1, 2, 3, and somebody says draw the subsets. So the very first subset is the empty subset. Then let me make sets having 1, 2, 3. माने set एक के छोटे छोटे टुकड़े. What others you can make? You can make one more subset with 1, 2, 2, 3, and then 1, 3, bringing 2 elements in now. Initially you thought of putting no 1, 1 element. Then you thought of putting no 2, 2 elements. You can also go for all 3 elements 1, 2, 3. So in all 1, 4, 8. So there are 8 subsets formed. Which answer you can get it by 2 raised to n also. N is number of elements in the set. So I had no 3 elements over here. So I can see the subsets are 8. उसमें से if you see this subsets, they are proper subsets. Proper टुकड़े है एक के. 1, 2, 3 is the A itself. So it just doesn't seem to be that digestible. Okay, the set himself is also a subset of him. Mane A is also a subset of itself. But then by the definition of subset, if the element of a set belongs to the parent set, if every element in the set under consideration belongs to the parent set, then that set is called as the subset of the parent set. 1, 2, 3 satisfies. Each and every element was there in the parent set. So he also had to be called as a subset of A. लेकिन वो digest नहीं होता है. इसके लिए it doesn't come into the category of proper subsets. So proper subset में you will have to remove the last set, which is the set itself. So answer then will be 7 subsets proper. We have 8 subsets in my example, but then 1 less because the question was proper subsets. Here also the question is proper subset. So let's hit it. N of B is 5 elements. So number of subsets by that quick shot will be 2 raised to 5, 32 subsets. As we saw, 2 raised to n gives us quick number of subsets, 8 subsets. But remove 1, the last set, which is the set itself. Even he will be the subset of B.
So remove that set, and 31 are the proper subsets. So do not make any hasty decisions marking 32, because 32 also is the option. 31 is the proper subset. You can also have one more question in that. Let me add it over here. I don't know when we'll come across that, in which of the MTPs or past attempt papers. There's something called as non-empty subset. So if you remove that, the rest are non-empty. So if the question was get me the non-empty subsets, out of 8 you'll have to remove the top one. So again the 7 balance will be the non-empty subset, in which this will then be included, because ये तो पूरा भरा हुआ है. Then they may ask you a question clubbing both the words. Non-empty proper subsets. मैंने empty भी नहीं होना चाहिए, मैंने ऊपर का भी गुल करो, और प्रॉपर होना चाहिए, मैंने आखिरी वाला भी गुल करो, बिकॉज आखिरी वाला तो सेट इटसेल्फ ही है, उसका टुकड़ा जैसा तो फील ही नहीं हो रहा है. So 2 need to be removed. In that case the answer would have gone 30 if it is non-empty proper subsets. Now coming to the next one. So now almost coming to an end of first 40 questions of maths, of course. Let us not talk, it is A cross B union C. So A to stated, I'll write 1 comma 2 cross. When I combine, when I unify my B and C, it will then read 3, 4, 5 and 6. As we all know, in the cross, every element of this set will be mapped to all elements of this set. So I can see the mappings 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, sorry. So 1 is mapped with all the elements of the second set. Same happens with 2 also. Even 2 will get mapped to all the elements of the next set. So we have got 2, 3, 2, 4, we have got 2, 5 and we have got 2, 6. So we have got in all 8 ordered pairs. Now each of them is called as ordered pair. So 8 ordered pairs in the cross product. Now 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Can we just check that? Close call. Okay, I have got 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. First 4 are there. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Okay, the best answer is B. Now coming to the last one, integration. So two sums. Of course, I would have liked to read the function as x raised to minus 2. It's my patent habit. Rather memorizing, if I can take care of all my x raised to n ka integration just by using x raised to n plus 1 upon n plus 1, then why should I read 1 upon x square as a different function? Why not make it x raised to minus 2 and apply n plus 1, n plus 1. So let's hit the deck. E raised to x on integration is e raised to x minus x raised to minus 2 के integration में it's going to become minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So x raised to minus 1 upon minus 1. So x raised to minus 1 upon minus 1. This I'll take it over here. This I'll bring it down. And then I have to take it on to interval 1, 2, 3. So again we are going to go for two boxes. First box for upper limit e raised to 3 plus 1 by 3. Next box for the lower limit, so e raised to 1 plus 1 upon 1. So finally if I start working over here, it's going to be e raised to 3 plus 1 upon 3 minus e minus 1. So clubbing the e's, e raised to 3 minus e plus 1 by 3 minus 1. If I finish off dealing with that, it's going to be e raised to 3 minus e minus 2 by 3. So we can check it's the first option, e raised to 3 minus e minus 2 by 3. That's your answer. I think so clear tha. I just moved it a bit about to make it a bit clear. The working of upper limit minus lower limit. Sometimes a quick hasty work in that and you may turn up unfortunately into an answer which was also one of the options, the wrong one. May not God be doing that with you all. Those people who are working so hard. Watching these videos means the viewer must have in his mind
Let me just go through the discussion and then I'll sit tonight and finish off under the clock time in how much time I took, no, finished off my 100 sums. So it's always a good idea before I make a leave and I allow my colleague is, ओ बाहर से इशारा कर रहा है भाई, 40 सम में इतना टाइम खा गया, मेरा खाने का समय भी चले गया. But then we are looking at you all. So before I make a leave, my humble request to you all, as in all my other videos, you are watching this, that means you are on the right path. That means you are looking into past attempt. Now don't make a mistake after making such a wonderful move, which very few, I don't know for what reason, very few happen to look into all this. Maybe fear is something which is stopping them. That's what I'm asking you all, or we are asking you all. Go through these 100 sums. You got the feel. Now at night when you are just about to finish off the day, give yourself 1.5 2 hours. Sit down on the clock with a cup of coffee and go for it. Do it for MTPs, do it for past papers. 10 to 12 and you will be doing really great. In fact, this is the feeling what you will surely happen to get after 5-6 such mocks and attempts. यार कल सवेरे हो जाए पेपर तो यार क्या मजा आ जाए यार. I will turn up not clearing, I'll turn up getting good score. That's the thing what you need. So make no mistakes, ask your friends if they are not, कि भाई ठीक है लेकिन देख लो in the sense so that we can then solve it. The only fear what I'm talking about students is what, यार मेरा यार पूरा मॉड्यूल अभी कवर नहीं हुआ है, एडिशनल तो देखा भी नहीं है, आधा एडिशनल देखता हूँ तो मैं तो I just think of postponing the attempt. Yeah, I spend a day solving kuch crooked 10 sums of additional. Okay, fine, that was a part of the course. You did or you did not, that's not now going to count a lot. Neither you'll be able to make a big difference. It will be really foolish on somebody's part spending almost a day trying to get the solution of 10 sums of additional. वो जिद अब ठीक नहीं. When you were solving the topic तब ठीक था. Now, why not get into the actual heat, the hot stuff, MTPs, past papers. मुझे नहीं आया, मैं वीडियो में देख लिया, I practice, I got the hang of it. So one more time somebody gives me a similar sum, I'll be able to crack it. So get going please. This is all from me, not for December 23, all for me in this paper right now. My colleague is shortly joining you to cover the next 60. All the best for this paper. Go through it. Take a good amount of break in between. Do some other subject. Tonight or maybe after half a day, just finish off solving all 100 sums. Bye. Namaskar. Hello friend, myself Professor Vaibhav Karia and I welcome you all for the discussion of Statistics and Logical Reasoning Exam Paper December 2023. आपने ऑलरेडी मैथ्स अच्छे से सर के साथ कवर कर लिया, अब बारी स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग देखने की, राइट. सो लेट्स सी. सो सबसे पहला बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 जो चालू होता है लॉजिकल रीजनिंग के साथ. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, राइट. ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में से पूछा गया था. सो लेट्स सी द क्वेश्चन क्या बोलता है. If Sikkim is written as THLJJL, THLJJL, then how is training written in that code? तो हम लोग ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे. नाउ एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, एक वर्ड कोड दिया है, दूसरा वर्ड है कोड अपने को फाइंड आउट करना है, राइट. तो PQRST कहने से S और T हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और S और T के बीच में कोई भी लेटर्स नहीं है, सो आई राइट एट 0 आगे, राइट. देयर इज अ गैप ऑफ 0 लेटर्स बिटवीन S एंड T. GHI, नाउ यहाँ पे हम लोग I से H जा रहे हैं जो कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, 0 पीछे, राइट. हम लोग को पैटर्न आइडेंटिफाई करना है जैसे कि आपको पता है, JKL 0 आगे, JK 0 पीछे, 0 आगे और 0 पीछे. तो ये आपका पैटर्न बना,
ये आपका क्या बना, पैटर्न बना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वैसा, राइट। तो आपको ये सेम पैटर्न बाजू में चिपका देना है, आंसर आ गया। तो 0 आगे 0 पीछे, 0 आगे 0 पीछे, 0 आगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 पीछे, यहाँ पे वापस 0 आगे और 0 पीछे, राइट। तो T से 0 आगे आ जाएगा TU, R से 0 पीछे आपको जाना, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो PQR आ जाएगा AB, फिर वापस 0 पीछे है तो I से पीछे GHI, N से आपको आगे जाना है तो NO, वापस I से पीछे H, N से आगे O, एंड G से पीछे F। तो आंसर आ गया UQBHOHOF। तो UQBHOHOF, इट इज़ नथिंग बट ऑप्शन बी। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। इजी, राइट। एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन था, आप अगर अच्छे से करके जाते हो ये सब 15-20 सेकंड के आपके आंसर्स रहेंगे, उससे भी जल्दी आप ला सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, वो भी आपका LR का क्वेश्चन है, एंड वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे, राइट। सो 7 लोग बैठे हैं रूम में, कितने लोग बैठे हैं, 7 पीपल watching a movie. S is sitting at one of the extreme ends, Q is sitting second to the right of S, P is sitting between O and Q. Between U and O are not sitting at the extreme ends. R is sitting immediate left of T, who is sitting in the middle, right. तो अब सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, 7 लोग बना देने के, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि वो लोग ने कुछ नहीं बोला है, ये सब लोग फेसिंग नॉर्थ रहेंगे, वो लोग कैसे बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब याद रखने का कि लेफ्ट राइट ले तो कैसे ले, मतलब कोई बंदा है उसका लेफ्ट कौन सा रहेगा, सपोज मैं बोलता हूँ एस इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो टी के लेफ्ट में एस बैठा है, तो सर लेफ्ट किधर रहेगा, इधर रहेगा उधर रहेगा। तो ध्यान रखने का, अगर फेसिंग नॉर्थ है ना, तो ये पॉइंट जिधर भी आपका है, यहां से ये आपका रहेगा लेफ्ट एंड ये रहेगा आपका राइट, ये चीज का ध्यान रखने का, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले वो क्या बोलता है हम लोग को, वो देखो, एस इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो एस कोई तो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, मतलब या तो एस यहां पे बैठ सकता है या तो एस यहां पे बैठ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास। देखो अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, देखो आगे जैसे Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S, Q किधर है, S के सेकेंड राइट में है, S के सेकेंड राइट में, ठीक है। तो अब S सपोज ये फर्स्ट अरेंजमेंट में लेता हूँ, S के सेकेंड राइट में जगह है, राइट। पर अगर मैं नीचे वाला सेकेंड अरेंजमेंट लेता हूँ तो वहां पे सेकेंड राइट में जगह है नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली S ये एंड पे बैठ सकता नहीं है, तो ये पहली अरेंजमेंट करंटली पॉसिबल है, एस के सेकंड राइट में पहला राइट और दूसरा राइट। यहाँ पे कौन बैठा है आपका, Q, तो यहाँ पे Q बैठा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, P सिटिंग बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच में, तो Q तो अपने पास है, अब O किधर बैठेगा, तो ऑब्वियसली Q के लेफ्ट साइड पे नहीं बैठ सकता, O बैठ जाएगा यहाँ पे। O और Q के बीच में कौन बैठा है, P बैठा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है अपने से, बोथ U एंड O आर नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, ना तो U ना तो O एक्सट्रीम एंड्स पे बैठा है। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, और R किधर है, T के इमीडिएट लेफ्ट में। अब देखो एक एंड अपना यही बचा, यहाँ पे U बैठ सकता नहीं है, O भी बैठ सकता नहीं है, एंड R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो जिधर भी T बैठा है उसके लेफ्ट में। अब देखो Q और S के बीच में तो एक ही जगह है ना खाली, राइट, तो उधर तो कोई बैठ सकता नहीं है, दोनों 2 लोग साथ में नहीं बैठ सकते। तो R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ जाएगा R, ठीक है। और बच गया U बैठ जाएगी इधर, हो गया आपका अरेंजमेंट बन गया, SUQPORT। अब क्या पूछता है वो देखो, तो वो लोग आपसे पूछते हैं हु इज सिटिंग इन द मिडल, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में सेंटर में कौन बैठा है, तो 7 लोग थे, सेंटर में हो गया आपका P बैठा है बीच में, ऑप्शन बी। समझा सबको, क्लियर, इजी था। चलो
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 10th, राइट. व्हाट डज द क्वेश्चन 10 से? ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का मैपिंग का बच्चे जैसा क्वेश्चन है. लेट्स सी. पेयर इज रिटन है 7519. सो पेयर को लिखा 7519. टॉयल इज रिटन एज 2693. टॉयल को कैसे लिखा? 2693. और आगे क्या बोलता है? डॉक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर, तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है. वो लोग ने देखो डी को क्या बोला है, सर डी तो मेरे पास है ही नहीं, तो अब बाकी के देखने पड़ेंगे और फिर जो भी मोस्ट सूटेबल अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा, राइट. ओ है सर, ओ को 6 बोला है. फिर सी है सर, सी भी नहीं है. टी है सर, टी है 2 पे. फिर ओ है हमारे पास 6 पे और आर है 9 पे, राइट. तो ये देख लो कि लास्ट के 3 लेटर्स 269 कहाँ पे है. तो एक ही ऑप्शन अपने पास पड़ता है, वो है ऑप्शन सी. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. समझा, राइट. सो 50% हम लोग ने सॉल्व किया, 50% वो लोग ने ऑप्शन से दे दिया था. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11? सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज कमल वॉक्स 10 किलोमीटर्स नॉर्थ. फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ. तो सबसे पहले वो नॉर्थ में चलता है, तो चलो उसको नॉर्थ में चलाते हैं. क्वेश्चन 11. तो देखो अगर आपको अच्छे से करना है ना तो ये प्लस बना लेने का, ये बहुत हेल्प करता है अपने को, ठीक है, सॉल्विंग में. तो क्या बोलते हैं वो लोग? तो कमल सबसे पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, तो यहां से वो 10 किलोमीटर सपोज नॉर्थ में गया. आफ्टर गोइंग नॉर्थ उसने क्या किया? उसने वहां से 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चलना चालू किया. तो यहीं से वो कहना से उल्टा आया वापस. तो यहां से वो उल्टा आया 6 किलोमीटर साउथ. तो सपोज ये आपका हो गया 6 किलोमीटर साउथ. अब कमल यहां कहीं पे खड़ा हुआ है, राइट. आगे वो लोग क्या बोलते हैं? आगे जैसे देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. फिर वहां से वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है. तो यहां पे हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका 3 किलोमीटर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद द रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा है, ऐसा उसने तेरे को पूछा है. तो ये तेरा स्टार्ट पॉइंट था, उसने वहां पे एंड किया था. ये तो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? ये डायरेक्शन तो बन रहा है नॉर्थ ईस्ट. अब आगे क्या बोलता है कि डिस्टेंस भी तुझसे पूछा है. सो फॉर डिस्टेंस यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये अपना स्लोप बना, राइट. तो मुझे ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, ठीक है. ये साइड मेरे पास 3 किलोमीटर पड़ा हुआ है. अब ये साइड की अगर मैं बात करूं तो इट इज नथिंग बट 10 - 6 विच इज नथिंग बट 4 किलोमीटर्स, राइट. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट आपका बन जाएगा 5 किलोमीटर्स. सो आंसर क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट एंड 5 किलोमीटर्स. दैट इज नथिंग बट ऑप्शन सी. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. इजी था. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. सो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, राइट. सो मेरा ब्लड रिलेशन मैं थोड़ा अलग लेवल पे पढ़ाता हूँ. मीन्स मैं थोड़े सिम्बॉल्स एक्स्ट्रा यूज़ करता हूँ, राइट. सो मेल्स के लिए मैं स्क्वायर्स यूज़ करता हूँ, डिब्बा बोलता हूँ मैं. फीमेल्स के लिए डिब्बी, सर्कल्स बोलता हूँ मैं. सो अगर आपको एक बार अपना एक पहले रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो. उसमें मैंने अच्छे से LR कवर किया हुआ है, राइट. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. और फिर ये पेपर अगर हो सके तो देखना आप चालू कर सकते हो, राइट. चलो आ जाओ. तो मैं जितना साथ में होता जाएगा, जो लोग भी फर्स्ट टाइम हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं वो लोग देखते जाइए, आपको समझते रहेगा, राइट. आ जाओ. देयर आर 6 persons A B C D E and F in a family. B is the son of C but C is not the mother of B. बोलता है B जो है ना वो C का बेटा है, राइट. तो मेरे पास सबसे पहले रहेगा कौन? C. क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले पास रहेगा मेरे पास C.
और सी कौन है वो देखो। सो सी कौन है, बी इज द सन ऑफ सी। ओके, तो बी कौन है, सी का बेटा है। ओके, तो सी बन गया नीचे एरो क्योंकि उसका बेटा है और उसका बेटा है बी, तो बी बन जाएगा डिब्बा क्योंकि वो मेल है, राइट। आगे, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अरे बी तेरा बेटा तो है पर तू उसकी माँ नहीं है, ऐसा कैसा? तो अगर तू उसकी माँ नहीं है तो तू कौन हो जाएगा, उसका पप्पा, राइट। ओके, ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, बोलता है ए और सी की शादी हुई। अब देखना, याद रखना, शादी वालों के लिए टू ऑपोजिट एरोस, ठीक है। और ए और सी की शादी हुई थी, तो अगर वो डिब्बा था वो उसका पप्पा था, तो ए कौन हो जाएगी, उसकी मम्मी। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई कौन है, भाई है, किसका भाई है, सी का। तो ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो सी और सी का भाई ई। आगे, डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी कौन है, डॉटर ऑफ ए, तो ए की बेटी का नाम कौन है, डी। अब डी बेटी है तो बन जाएगी डिब्बी, फीमेल। अब ध्यान से देखना, सी का बेटा बी, ए की बेटी डी, ए और सी मैरिड कपल, तो बी और डी आपस में भाई बहन हो गए ना। तो भाई बहन सिमिलर जनरेशन के लिए ये वाला अपन यूज करेंगे एरो, राइट। ओके, देखते आगे। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। एफ कौन है, भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, तो ये भी बन गया डिब्बा। अब आगे क्या बोलता है अपने से, हु इज द मदर ऑफ बी। बी की माँ कौन है, तो बी की माँ कौन है, ए। खत्म। देखो, सी उसका पप्पा था, ए उसकी माँ, ए इज द मदर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आंसर बी ए। समझा, ए इजी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन 13, व्हेन मिस्टर पी सॉ मिस्टर क्यू ही रिकॉल्ड। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, राइट, ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है। तो व्हेन मिस्टर पी सॉ मिस्टर क्यू ही रिकॉल्ड, तो पी ने जब क्यू को देखा तब उसको याद आया, क्या याद आया, ही इज द सन। ही इज द सन मतलब कौन इज द सन, क्यू इज द सन। क्यों, क्यू को देख के उसको याद है ना, तो क्या बोलता है, बोलता है क्यू इज द सन, राइट। तो क्यू किसका सन है, क्यू किसका सन है, ऑफ द फादर, वो किसी के पप्पा का बेटा है। किसके पप्पा का बेटा है, ऑफ माई डॉटर्स मदर। माई डॉटर्स मदर, मेरी जो बेटी है ना, मतलब पी की जो बेटी है ना, उसकी जो माँ है ना, उसके पप्पा का बेटा क्यों है। अगर तू हिंदी में समझने जाए तो ऐसा बनता है पूरा तेरा गोल रिलेशन। अगर तू हिंदी में समझने जाए तो ऐसा पूरा तेरा गोल रिलेशन बनता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, शांति से एक एक का डायग्राम बनाते हैं और चीज़ों को अपन यहाँ पे समझते हैं कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं अपने से, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले पी को बनाते हैं, क्यू को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन 30। सो पी और क्यू किधर तो भी तेरे पास रहेंगे, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं पी को। पी क्या बोलती है, माई। पी क्या बोलती है, माई। माई, माई से चालू करो, माई डॉटर्स मदर, मेरी बेटी, मेरी बेटी, माई डॉटर्स। तो मेरी बेटी की माँ, और मैं मिस्टर पी यहाँ पे दिया भी हुआ है, मिस्टर पी, तो ये कौन रहेगा, मेल रहेगा ना। अब मेरी बेटी की माँ, मेरी कौन लगेगी, ऑब्वियसली वाइफ, तो मेरी कोई तो वाइफ है ना। समझा, इतना समझा, ओके। अब उसका क्या, तो ही इज द सन ऑफ द फादर, वो कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, बाप का बेटा है। तो ये जो मेरी जो बीवी है ना, उसका बाप, मतलब मेरा तो ससुर जी हो गया ना, अगर मैं मिस्टर पी हूं तो उसका पप्पा, और इसका कौन है, बेटा, मतलब मेरी बीवी का कौन हो गया, वो भाई हो गया ना। और वो कौन है, ये बेटा कौन है, मिस्टर क्यू। खत्म। तो एक बार वापस देखते चाहिए तो ध्यान से देखते रहना, पी क्यू को देख के क्या बोलता है, ही इज द सन। देख तेरे को ये बेटा दिखता रहेगा, किसका बेटा है, ऑफ द फादर, किसी के बाप का बेटा है। किसके बाप का बेटा है, मेरी बेटी की माँ का बाप, मतलब मेरी बेटी का नाना, उसका बेटा, मतलब मेरी बेटी का मामा। समझा,
हिंदी में अगर सॉल्व करोगे ना तो बहुत ईजी है, इंग्लिश में तो इसमें घूमते रहोगे 10 जन्म तक तेरा आंसर नहीं आएगा। तोड़ तोड़ के हिंदी में सॉल्व कर, ठीक है। चलो आ जाओ, बात करते आगे क्वेश्चन की। क्या बोलता है वो, हु इज क्यू टू पी, हु इज क्यू टू पी। अब याद रखने का, हमेशा पीछे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को देखने का। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसको देखने का, हमेशा पीछे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को देखने का। पी के हिसाब से क्यू को देख, तो पी के हिसाब से क्यू कौन लगता है तेरा, पी के हिसाब से क्यू कौन लगता है तेरा, तो मेरी बीवी का भाई, मतलब देख मेरा भाई नहीं है वो, मेरा कौन है, ब्रदर इन लॉ है। कौन सा ऑप्शन है, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी। हिंदी में सर उसको क्या बोलेंगे, साला। इजी, समझा सबको। धीरे धीरे तोड़ तोड़ के सॉल्व करने का आंसर आता ही आता है, गारंटी आएगा, पर उसको तोड़ तोड़ कर सॉल्व करने का तो ही। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अक्षत सेड। तो बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए कौन बोला, अक्षत कुछ तो बोला। तो क्या बोलता है अक्षत, देखते हैं। हिज मदर, हिज मतलब देख अक्षत, अक्षत बॉय को देख के बोल रहा था ना, इंट्रोड्यूसिंग बॉय, वो इंट्रोड्यूस कर रहा था बॉय को, तो मतलब वो लड़के की माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू बॉय। चलो अब धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर इसको भी बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले एक लड़के को बना देते हैं, क्योंकि अक्षत उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, ये लड़का क्योंकि अक्षत उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। और अक्षत इसको इंट्रोड्यूस करके क्या बोल रहा था, हिज मदर, हिंदी में बोलेंगे उसकी माँ, तो इसकी कोई तो कौन होगी, माँ होगी। इज द ओनली डॉटर, उसकी माँ कौन है, अकेली बेटी है, उसकी माँ ही अकेली बेटी है। किसकी अकेली बेटी है, देखते, ऑफ माई मदर इन लॉ। माई मतलब मैं कौन था, अक्षत था ना, तो मेरी जो सासू माँ है उसकी अकेली बेटी, ठीक है। अब देख एक बात समझ, ये लड़के की कोई तो माँ है, वो अकेली बेटी है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, तो इसके ऊपर तो कोई ना कोई तो रहेगा ना, बराबर है, ठीक है। मतलब ये किसी ना किसी की तो बेटी होगी ना, ठीक है। अब ये किसकी बेटी है, ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ की बेटी है। तो मैं अक्षत और मेरी सासू माँ, तो ये औरत मेरी सासू माँ कैसे लगेगी, ये मेरी सास कैसे लगेगी, ठीक है। तो एक बात समझ, जब उसकी बेटी से मेरी शादी हुई रहेगी तब, तो ये जो औरत है वो और कोई नहीं, मेरी बीवी है, खत्म, बन गया। तो ध्यान से देखते, एक बार वापस देखते हैं, ध्यान से देखना। सो अक्षत ने वो लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या बोला है, ए तेरी जो मम्मी है ना, तेरी जो मम्मी है ना वो अकेली बेटी है। किसकी अकेली बेटी है, मेरे सासू माँ की। तो मेरे सासू माँ, अगर वो औरत मेरी ऊपर वाली औरत मेरी अगर सास लग रही है, तो बाजू वाली औरत मेरी बीवी लगनी चाहिए ना, तभी तो उसकी माँ मेरी सासू माँ बनेगी, बराबर है, खत्म, गेम ओवर। और तुम मानेगा नहीं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, और ये जेके शाह क्लासेस की बुक में भी पढ़ा हुआ है, राइट। सो देखते हैं, एंड सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया। आ जाओ देखते हैं, तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन, क्या पूछता है, हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू बॉय, बॉय के हिसाब से अक्षत कौन हुआ। देख लड़का कितना पापी है, अपने पप्पा को भूल गया, फादर आएगा आंसर, याद रखने का। देख हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू दैट बॉय, रट्टा नहीं मारने का, याद रखने का, पीछे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ से आगे वाले को देखना है। अक्षत का नाता उस बॉय के हिसाब से क्या है, अक्षत का नाता उस बॉय के हिसाब से क्या है, समझा। चल तो फादर कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी, समझा सबको। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन 50 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 से शोइंग द मैन प्लेइंग द क्रिकेट मिस्टर पी सेड। तो चलो अब आगे नहीं पढ़ते, डायरेक्टली स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। पी कुछ तो बोलता है, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया इतने सारे क्वेश्चन करके, और देख एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन इस पे बन चुके हैं ऑलरेडी। तो पी कुछ तो बोलता है, क्या बोलता है पी, ओके। सो पी सेज ही इज द ब्रदर, वो कौन है, भाई है। किसका भाई है, माई अंकल्स डॉटर, ठीक है, मेरे अंकल की बेटी का वो
भाई। तब सबसे पहले अपन मेरे अंकल की बात करते हैं। मेरा कोई अंकल लगता रहेगा, माय अंकल। तो अंकल देख, इंग्लिश में नॉर्मली दो लोगों को बोला जाता है अंकल जब शब्द आता है तब। एक अंकल बनता है वो है तेरा चाचा, और दूसरा अंकल बनता है वो है तेरा मामा, मतलब या तो पप्पा का भाई या तो मम्मी का भाई। तो अब मेरे ऊपर या तो मेरा पप्पा रहेगा या तो मेरी मम्मी रहेगी, मुझे नहीं पता, और उसका कोई तो भाई है, माय अंकल। तो ये देख, ये चाचा भी हो सकता है, ये चाचा भी हो सकता है, और ये बंदा मामा भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसने स्पेसिफाई किया रहता क्वेश्चन ने पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, तो हम लोग को समझ में आता। पर क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, पैटर्नल कि मैटरनल है, तो फिर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्या बोलता है, माई अंकल्स डॉटर, तो मेरे अंकल की कोई तो बेटी है। ठीक है, ओके। अब आगे क्या, और वो कौन है, उसका भाई है जो क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका कौन है, भाई है। और ये भाई कौन है, वही मैन है जो कौन क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। अब आगे क्या पूछता है तेरे से, हु इज द मैन टू मैसर्स पी, तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैन उसका कौन लगता है। तो पी के हिसाब से वो मैन कौन लगता है, तो देख, वो बेटी का वो भाई था, बराबर है, तो वो भी तेरे चाचा या तो मामा का बेटा हो गया। तो चाचा का बेटा हो या मामा का बेटा हो, उसको क्या बोलते हैं, कजिन। ठीक है, ऑप्शन बी। अब मैं मेरे बच्चों को लेक्चर्स में बताता हूँ, मैं आप लोग को भी बताना चाहूँगा। देख, ऑप्शन तो कुछ भी रह सकता है। सपोज मैं आपके साथ भी ये चीज़ करना चाहूँगा, आपको ये दिखाना चाहूँगा। सपोज सन रहता, बी ऑप्शन कजिन रहता, सी ऑप्शन ब्रदर रहता, एंड डी ऑप्शन अंकल रहता। तो आप लोग क्या मार्क करते, कजिन मार्क करते कि ब्रदर मार्क करते? ऑब्वियसली आप लोग कजिन ही मार्क करते हैं, क्योंकि आपका सगा भाई नहीं है। ओके, चलो सर अगर कजिन नहीं रहा तो चलो, तो वापस मैं कजिन के जगह पे एक और ऑप्शन दे देता हूं, नन ऑफ दिस। तो अब मैं ब्रदर मार्क करूंगा कि नन ऑफ दिस? हाँ सर, कितना इजी है, ब्रदर नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। समझा? बस यही ट्विस्ट वो लोग एग्जाम में भी कर सकते थे तेरे साथ। अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं डेफिनेटली यही चीज करता। लोगों को क्लैरिटी रहनी चाहिए ये चीज की। ठीक है, भाई अगर कुछ नहीं बोलता तो रियल ब्रदर रहेगा। सर अगर ये नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता तो ऐसा भी वो लोग कर सकते हैं। हाँ चल, मैं चौथा ऑप्शन ये डाल देता हूँ, ब्रदर इन लॉ जो दिया है, सन ब्रदर इन लॉ ब्रदर अंकल। सर अब क्या मैं मार्क करूँ, क्वेश्चन गलत है? नहीं, अब तू मार्क कर ब्रदर। अरे आखिर में वो तेरा भाई तो है ही, आखिर में वो तेरा भाई तो है ही। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ऑप्शन का पूरा खेला है, ये चीज को तुम लोग समझना। यू हैव टू मार्क द मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट आंसर। चलो आ जाओ, अब थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का पार्ट चालू हो रहा है आई गेस। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16, बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव शब्द आपको गौर करना था, against the respective class boundaries we get what, frequency curves, ogives, frequency polygons, histogram. The correct answer is ogives. ठीक है, चलो, क्योंकि क्यूमुलेटिव शब्द आया इसके लिए। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विजिटर इन एन ऑफिस इज गिवन बिलो। टाइम दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द विजिटर बिटवीन 11 AM एंड 1 PM। तो आप लोग को CF फाइंड आउट करना है, किसका किसका, 11 एंड 1 PM के बीच में। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे अपन लिख ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, उसमें हम लोग को CF चाहिए था। तो 9 AM टू 11 AM की मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, वो लोगों ने 5 दी है, और मुझे CF चाहिए, तो लेस देन CF अज्यूम करके चलते हैं फॉर द टाइमिंग, और 5 लिख देते हैं। फिर 11 AM टू 1 PM,
फ्रीक्वेंसी दी है आप लोग को 18, तो ये 5 + 18 हो जाएगा 23। तो हम लोग को वही पूछा है कि बिटवीन आपका CF कितना रहेगा 11 to 1 का 23, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन बी। इजी। चलो मूविंग फर्दर, द AM and HM ऑफ द नंबर्स आर 5 and 3.2, देन द GM। तो आपको इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशनशिप विथ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन याद रहना चाहिए। GM इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ AM इंटू HM, ये है उनका रिलेशनशिप। अब देखो GM का फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन, तो आपके यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन कौन से, AM एंड HM, ठीक है, और उसका रूट दैट इज नथिंग बट योर GM। तो बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड ये क्वेश्चन था आपका, राइट। आ जाओ तो देखते क्या बोलता है, GM कितना है वो पूछा है, तो GM विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 इंटू 3.2। सो ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 16, दैट इज नथिंग बट 4, एंड वो है आपका ऑप्शन सी। क्लियर। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन 90। इफ द क्वार्टाइल डिविएशन इज 12 एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25, देन द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल विल बी, राइट। सो क्वार्टाइल डिविएशन, तो सबसे पहले क्वार्टाइल डिविएशन का आपका फॉर्मूला QD इज नथिंग बट, देखो याद रखना ये इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज पढ़ा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये भी उसमें ही है वो भी उसमें ही है। तो रेंज बोलता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो यहाँ पे किसका हाईएस्ट और लोएस्ट लेना है, क्वार्टाइल्स का, राइट। तो आपका हो जाएगा Q3 आपका हाईएस्ट एंड Q1 आपका लोएस्ट। देखो फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मारने के, समझ के सॉल्व करने के। और उसका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। तो सेमी मतलब डिवाइड बाय 2। देखो एग्जाम में वो लोग आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना कभी कभी वो लोग एग्जाम में पूछते भी है फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो समझने का क्यों QD की बात कर रहा है, पर गलती से अगर उसने बोल दिया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज तो Q3 माइनस Q1, समझा। चलो तो आपको QD दिया है कितना, 12 दिया है, ओके QD। फिर दिया है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल दिया है 25, फर्स्ट क्वार्टाइल 25 दिया है, थर्ड क्वार्टाइल पूछा है, तो Q3 माइनस 25/2, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, राइट, ओके। तो 12 2 हो जाएगा 24 इक्वल्स टू Q3 माइनस 25, देयरफॉर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, Q3 इक्वल्स टू 24 + 25 हो जाएगा आपका 49। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी। ये सब आपके 10-10 सेकंड का क्वेश्चंस है, आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप इसमें बहुत टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। चलो सो जितना हो सके एग्जाम, देखो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ सर पेपर छूट गया ये वो, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको पिन पॉइंट सब रट्टा होने चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं ना बोलता कि रट्टा मार के नहीं पढ़ने का, पर अगर मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला रट्टा तो मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ लगानी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो समझ के रट्टा मारो वो बात अलग है, हाँ वो चतुर नहीं बनने का। चलो इफ मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा इज 10 एंड मीडियन इज 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। तो इससे आपको याद आना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। आपको वो रिलेशन याद आना चाहिए और आपको पता रहेगा अगर, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका रिलेशन था। तो अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो क्या क्या देता दिया, देखो मोड दे दिया है 10 बस, फिर और क्या दिया है, मीडियन दिया है 6, 3 इंटू 6 माइनस 2 मीन, या 2 मीन मैन, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये रखते 18 माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन को उधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 10 को ये बाजू ले लेंगे तो 18 माइनस 10 हो जाएगा 8, देयरफॉर मीन विल बी इक्वल्स टू 4, ऑप्शन इजी। सो अप्लाई द फॉर्मूला एंड सप्लाई द आंसर, ठीक है। और ये आप समझ लो उनका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, दिखता ही दिखता है ऐसा, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड तो दिखता ही ऐसा, मैंने बहुत बार दिखा ये चीज़, राइट। आ जाओ
क्वेश्चन 21, क्या बात है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अति उत्तम क्वेश्चन। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मेरा थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। याद रखना, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें रहती है। यहाँ पे दो बात एक्चुअली, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए नॉर्मल कर्व और नॉर्मल बातें होती है, पर अगर चीज़ें थोड़ी एबनॉर्मल हुई तो चीज़ आती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट भी बोलते हुए लोग, ठीक है, इस पे वो लोग ने बेसिकली दो अजम्पशंस रखे हुए। ये बना तो क्यों बना, ठीक है, तो ये बना आपको एकदम बड़ा वाला गौसेन का जो फॉर्मूला था वो सिंप्लीफाई करने को बना, राइट। इस पे दो अजम्पशंस के साथ चलते, एक तो म्यू जीरो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू 1, बस इसी पे क्वेश्चन था। तो देख लो कहाँ पे म्यू जीरो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, आपका काम खत्म, वो है ऑप्शन बी में। तो 21 का आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि वर्ड कौन सा है बेटा, स्टैंडर्ड। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड को भूलना नहीं है, स्टैंडर्ड को भूलना नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है। क्वेश्चन 22, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर गिवन, ओके, द अरिथमेटिक मीन। तो एकदम सिंपल सा बच्चे जैसा क्वेश्चन है, सर मुझे अरिथमेटिक मीन चाहिए, ये दोनों लाइन से x ऑन y ऑन x है। सिंपली सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। अब सबसे पहले वैल्यूज x और y को हम लोग बराबर से प्लेस कर लेते हैं। चलो, तो क्या बोलता है, 10x माइनस 290 इक्वल्स टू 25, तो 20y को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 20y, और माइनस 290 वो बाजू जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव 290, एंड 7y माइनस 140 इक्वल्स टू माइनस 4x, तो वापस माइनस 4x को ये बाजू ले लेते हैं, प्लस 4x हो जाएगा। फिर आपका 7y प्लस में ही रहेगा, और साथ में है आपका कितना है, आपका है माइनस 104, वो बाजू जाएगा तो प्लस 104 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो चलो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और x अपन मैच करके कट कर देंगे। ठीक है, इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 40y, 29 इंटू 2 58, 580, और नीचे वाले को 5 से, तो ये हो जाएगा आपका वापस है 20x प्लस 7 5 35y इक्वल्स टू 104 इंटू 5, तो 104 इंटू में अगर 5 करता हूँ तो हो जाएगा 520, और सब्सट्रैक्ट करेगा अब इसको। तो अब फेवरेट गेम काटो काटो, ठीक है, आ जाओ तो काटते हैं। 20 माइनस 20 कट, ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल्स टू कितना 60, तो y बार आपको मिल गया 12। ठीक है, तो ये देखो y बार 12 12, तो या तो ए आंसर या तो बी आंसर। अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को, तो आ जाओ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में करते हैं। आ जाओ, सो 10x प्लस 20y फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, तो 20 इंटू 12 विल बी इक्वल्स टू 290, तो 10x प्लस 240 विल बी इक्वल्स टू 290, तो 10x विल बी इक्वल्स टू 50, तो x बार कितना मिल गया आपको 5, तो आंसर आपका आ गया 5,12। देखा था, मैंने देखा था ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो, अब ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि भाई कभी भी अरिथमेटिक मीन पूछे और दोनों रिग्रेशन लाइन दी, सीधा सीधा साइमल्टेनियस इक्वेशन। आज इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे वाह, तो चलो अपन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थियोरी थोड़ी सी याद करते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये लोग देते हैं n इंटू पी से, ठीक है, एंड वो लोग वेरिएंस देते हैं एन पी क्यू से। ठीक है, तो P is nothing but your probability of success and Q is nothing but 1 minus success, that is equal to your failure, and N equals to number of trials। चलो क्या पूछता है वो, और दे दिया 7 and 6, तो मीन कितना है 7 और ये कितना है 6। एक और बात
याद रखना हमेशा, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी बन चुका है कि भाई मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज का ध्यान रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो मीन की वैल्यू है वेरियंस से ज्यादा है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर रहता है। हाँ चलो, तो पूछता क्या है, बोलता है मेरे को पी फाइंड आउट करके दो, तो देते हैं उन लोग को पी चाहिए, हम लोग पी देते हैं। देख दिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, यानी कि उन लोग को चाहिए पी। तो इसको सॉल्व कैसे करने का, तो ध्यान से देखो, याद रखने का हमेशा वेरियंस अपॉन मीन करने का। क्या करने का, वेरियंस अपॉन मीन। सो कैन आई राइट दिस एज एन पी क्यू अपॉन एन पी, और उसकी भी वैल्यूज अपने को पता है कितनी है, ये ऊपर वाली थी 6 डिवाइड बाई 7। काटो एन पी कट, तो Q कितना आ गया 6/7। हे अगर Q 6/7 है तो P इज नथिंग बट 1 माइनस Q, therefore P is nothing but 1 minus 6/7, that is nothing but 1/7। इजी हो गया, खत्म। ऑप्शन सी। लिख के भी मैं कर रहा हूं ना तो भी 30 सेकंड जा रहे हैं, तो बिना लोगे तो सोचो कितना फटाफट फटाफट तो कर सकता है। प्रैक्टिस रहेगी, ये सारे क्वेश्चंस तो ओरली भी सॉल्व कर सकता है आराम से। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ द टू वेरिएबल्स। सीधा क्लियर कट डेफिनेशन है ये कार्ल पियर्सन वाले भाई का। ऑप्शन बी, आंख बंद करके तो आंसर मार्क कर सकता है। ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का एक फॉर्मूला था, R इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। वही बात कर रहा है वो। रेशियो मतलब डिवाइड, किसका डिवीजन, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी एक्स एंड वाई टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो हो गया ना, ये देख कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, उसका रेशियो किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, उनके ही स्टैंडर्ड डिविएशन का। बन गया कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। समझा, समझ के रट्टा मारो। चलो तो यहां से तो आई गेस मैथ्स ही मैथ्स दिख रहा है मुझे। मैथ्स 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 आ गया वापस, LR आ गया थोड़ा स्टैटिस्टिक्स करने के बाद। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का, और एक दो लोग भी नहीं, लोग भी ज्यादा है। चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन 31। तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं और कितने लोग हैं वो देख लेते हैं। तो ABCDEFGH 8 लोग हैं, 8 लोग। तो सबसे पहले 8 लोगों को प्यार से बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देख सबसे पहले अगर कोई तेरे को फिक्स्ड पोजीशंस या बिटवीन वाली लाइन है ना, वो सब चीज के पास जाने का, ठीक है, तो उससे क्लैरिटी ज्यादा आती है। सबसे पहले फिक्स्ड पोजीशन को देख। फिक्स्ड पोजीशन का मतलब क्या बोल देगा, ये इसके थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो अपना काम आसान कर लेता है। देख जैसे कि दिया ही है तेरे को, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A जिधर भी बैठा है ना उसके तीसरे लेफ्ट में D बैठा है। तो सपोज मैं इधर A को सेंटर में बिठा के इधर इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्स का मतलब क्या, ये जगह पे आज के बाद और कोई नहीं बैठ सकता। अब उसका लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट मतलब वो बाजू रहेगा। देख ले, एक पहला लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट। इधर कौन बैठा है, D फिक्स है, D सिट्स थर्ड लेफ्ट। वो जगह पे अब कोई बैठ नहीं सकता, A भी नहीं हिल सकता, D भी नहीं हिल सकता। 2 लोग तो बैठ गए। आगे देखते जा फटाफट फटाफट। E सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A के इमीडिएटली राइट में कौन बैठा है, E, तो इधर E बैठ जाएगा। 3 जन हो गए। B इज थर्ड लेफ्ट ऑफ D के भी तीसरे लेफ्ट, D उधर है तो D का लेफ्ट वो बाजू जाएगा, तीसरा लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट। इधर कौन बैठा है, B इज थर्ड लेफ्ट ऑफ D, तो इधर बैठा है B भी हो गया फिक्स। 4 लोग खत्म, 50% क्वेश्चन खत्म। फटाफट फटाफट करते जा। G इज सेकंड टू द राइट ऑफ B के सेकंड राइट में, तो B बैठ गया, उसके सेकंड राइट में पहला राइट और दूसरा राइट कौन बैठा है, G भैया बैठे हैं। ओके, आगे C इज नेबर ऑफ B। देख B का नेबर C, इससे ना 2 इंटरप्रिटेशन निकलता है। नेबर मतलब उधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, लेफ्ट में भी बैठ सकता है, राइट में भी बैठ सकता है। लेफ्ट में बैठा है E, तो जगह एक ही बची C को बैठने की, इधर। ओके, C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H के तीसरे लेफ्ट में C है। तो देख अगर तू मेरे तीसरे लेफ्ट में है तो मैं तेरे तीसरे राइट में, तो C से तीसरा राइट देख, तो C के पहले राइट में है G, दूसरे राइट में D, तीसरे राइट में H, इधर आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अरे तू मेरे लेफ्ट में तो मैं तेरे राइट में। ओके, अब बचा एक ही बंदा, कौन बच गया, नाम भी नहीं दिया उसका, तो
आ जाओ देखते, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ, बच्चा एफ, एफ बैठ जाएगा इधर, खत्म, गेम ओवर। आ जाओ, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में कौन बैठा है, ए, ऑप्शन डी। समझा कि नहीं समझा, इजी। चलो आ जाओ, 32 मैथ्स 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 आ गया। 35th, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द सीरीज। अब देखो, आप लोग से एक बात शेयर करना चाहूँगा, बहुत लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, इवन योर इंस्टीट्यूट, राइट। ये पार्ट बेटा आपका रॉन्ग टर्म के साथ लोग मिक्स कर देते हैं। तो देखो, दो चीज़ है, एक तो फाइंड द रॉन्ग टर्म एंड दूसरा फाइंड द ऑड मैन आउट। इन दोनों के बीच में बहुत ही थिन लाइन है। रॉन्ग टर्म मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो नंबर गलत है, ये रॉन्ग टर्म का मतलब होता है। एंड ऑड मैन आउट मतलब नंबर अलग है। तो सर पता कैसे चलेगा कि ये सच्चे में ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है कि रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है? तो मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर ये पैटर्न बन रहा है इसमें और रैंडम नंबर्स नहीं है, क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है और रैंडम नंबर्स नहीं है, तो ये आपको ऑड मैन आउट का नहीं, रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन होगा। तो एक बार सबसे पहले देख लो क्या रैंडम नंबर्स है, नहीं। देखो लाइन से जा रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं नंबर्स, 16, 25, 36, 72, 144, 196, 225। तो ये ऑड मैन आउट का नहीं, सॉरी, ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ये बात समझती नहीं और बहुत सारे लोग भी ये बात को नहीं समझते, क्योंकि आप हिंदी में कन्वर्ट करो तो ही आप समझ जाओगे। ऑड वन आउट मतलब नंबर अलग है एंड रॉन्ग टर्म मतलब नंबर गलत है, ठीक है। चलो, तो ये सबसे पहली बात, ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट बहुत बार मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे हम लोग डिफरेंस देखते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे, राइट। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को आगे बढ़ाती है। आ जाओ, तो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 35, सिक्सटीन 25, तो 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 72 यार किसका स्क्वायर है, मेरे को तो पता ही नहीं, देखते आगे। 144 है सर, 12 का स्क्वायर है। फिर 196 है सर, 14 का स्क्वायर है। एंड 225 15 का स्क्वायर है। जबकि 72 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एक अकेला नंबर है, ठीक है, जो स्क्वायर बन रहा नहीं है, बाकी के स्क्वायर नंबर्स बन रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सर पक्का एक बार बोल दो ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है कि ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे नंबर्स तो असेंडिंग ऑर्डर में गए पर पैटर्न बन रही नहीं है, तो अब आप इसको बोल सकते हो कि अच्छा ये रॉन्ग टर्म का नहीं है, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों चीज साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड जानी चाहिए, राइट। तो ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन नहीं है, ऑड मैन आउट का है। अगर इसमें हाँ पैटर्न बनती, मतलब ऐसा रहता 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर नहीं, फिर 8 का, 9 का, 10 का, 11 का स्क्वायर, समझा। चल आ जाओ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 72 बिकॉज इट इज द ओनली नॉन स्क्वायर नंबर, ऑप्शन बी। आ जाओ नेक्स्ट 36, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, खाली अरेंज करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 36, स्टेटमेंट इज रिटन एज, तो लोग ने स्टेटमेंट को कोई तो फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, TNEMETATS, TNEMETATS। तो आप ध्यान से देखोगे तो उल्टा ही लिख दिया वो लोग ने, STATEMENTEMENT, ठीक है। तो लोग ने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको भी किसका रिवर्स फॉर्म लिखना है, पॉलिटिकल का रिवर्स फॉर्म लिखना है। ओके, तो पॉलिटिकल का रिवर्स फॉर्म लिखना है, तो POLITICAL, ये बन गया आपका रिवर्स फॉर्म पॉलिटिकल का। तो LACITI
LACITI, तो LACITI LOP, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। खाली रिवर्स किया और आंसर आ गया। इसका 1 मार्क, कितना इजी। नहीं पढ़ के जाता लॉजिकल रीजनिंग तो भी पास हो जाता, ऐसा पेपर पूछा था। आ जाओ क्वेश्चन 37। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 37 से? 5 persons आर लिविंग इन अ 5-story बिल्डिंग। मिस्टर महेश लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोक। तो ओके, तो सबसे पहले अपन करते हैं क्वेश्चन 37 का एक डायग्राम जैसा बिल्डिंग बनाते हैं अपन। 2 3 4 5, ये आपका ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, ध्यान दे। बोलता है मिस्टर महेश लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोक, तो ये सपोज अशोक का घर है, तो अशोक के ऊपर किसका घर है? महेश का। आगे क्या बोलता है? लोकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे किसका घर है? लोकेश का। तो सपोज गौरव का घर ये है, गौरव के नीचे किसका घर है? लोकेश का। आगे बोलता है एंड राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, राकेश का घर किधर है? लोकेश के नीचे। लोकेश के नीचे किसका घर है? राकेश का। एक बार देख लेते, चेक कर लेते सब बैठा कि नहीं बैठा। महेश लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोक, महेश लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोक। लोकेश बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे लोकेश का घर। एंड राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, लोकेश के नीचे राकेश का घर। हो गया। हु लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे किसका घर है? राकेश भैया का घर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन 38। क्या बोलता क्वेश्चन 38? सुनीता वॉक्ड 30 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। आ जाओ सुनीता को चलाते हैं। क्वेश्चन 38, पहले ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन नहीं किया था, वैसे हम लोग प्लस बना देंगे तो काम आसान रहेगा अपना। सुनीता ने सपोज सेंटर से चलना चालू किया यहां से, तो वॉक टूवर्ड्स 30 मीटर्स ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट की तरफ गई जाती है वो। ओके सुनीता जा, बाय बाय। फिर सुनीता क्या करती है? देन टुक अ राइट। तो याद रखने का, देखो ईस्ट का राइट एक बार मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे, आप लोग प्लीज हो सके तो वो एक बार रिवीजन लेक्चर तो अच्छे से देख लो, मैंने ये सारी चीजें कवर की है। देखो लोग है ना क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं ऐसा, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का राइट, ये सब नहीं करने का। कॉमन सेंस वाली बातें याद रखने का। क्लॉकवाइज सारी चीजें आती है, क्लॉकवाइज यानी कि अपना राइट हैंड, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या, मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ, समझा। एंड लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, का लेफ्ट साउथ, का लेफ्ट ईस्ट, का लेफ्ट नॉर्थ, ठीक है। क्लॉक राइट, एंटी क्लॉक लेफ्ट। मतलब मैं बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं नॉर्थ में और मैंने मारा लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या आता है? वेस्ट, तो मैं वेस्ट में चलने लगूंगा। मैं वेस्ट में जा रहा हूं, मैंने मारा राइट, तो वेस्ट का राइट क्या आता है? नॉर्थ आता है, ठीक है। तो ईस्ट से राइट ले रही है, तो ईस्ट का क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन आता है? साउथ, तो वो जाएगी अब साउथ में। साउथ में कितना गई? 40 मीटर्स, तो यहां से वो 40 मीटर साउथ में गई। ओके बाय बाय। फिर उसने क्या किया? देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न। तो याद रखने का, अभी तेरे को मैंने सिखाया था, ठीक है। तो लेफ्ट, तो कहां से उसने लेफ्ट लिया? और साउथ में जा रही थी और लेफ्ट लिया, तो साउथ का लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, तो यहां से ईस्ट में जा रही है। ओके, कितना गई? 30 मीटर्स। अब तेरे से पूछता है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन सी दिशा में वो जा रही थी, मतलब अभी तू देखो कौन सी दिशा में, वहां से साउथ ईस्ट मध्ये आहे ते, साउथ ईस्ट। ऑप्शन सी। इजी, अरे इजी। चलो आ जाओ देखते हैं आगे क्या बोलता है। क्वेश्चन 39 है, अपना ही है, स्टैटिस्टिक्स का मीन दिया है। मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस x+1, x+3, x+5, x+7, x+9 इज गिवन एज 15, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट। तो 5 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन दिया है कितना? 15। तो x की कीमत क्या थी? मुझे पता है तेरे लाइफ में x की कीमत कुछ नहीं है, पर अपने को इधर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी। तो मीन का नॉर्मल जो आपका जो फॉर्मूला था आपको पता ही है, सब्मेशन x बाय n, है ना। अपने को ये फॉर्मूला पता ही है, सब्मेशन x बाय n। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं,
तो x+1 x+3 x+, तो 5x है उतना तो पता ही है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये दे दिया आपको 15 दे दिया था, ठीक है, इक्वल्स टू 5x। अब पूछना मत ये 5x कहाँ से आई, ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। चल आ जाओ, बोला था ना उसने हर लाइफ हर चॉइस, वैसा। तो 5x मेरे प्लस हो गए। अब खाली नंबर्स को प्लस करना है। 1+3 हो जाएगा आपका 4, 4+5 हो जाएगा आपका 9, +7 हो जाएगा आपका 16, +9 हो जाएगा आपका 25। तो 5x + 25 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5। 5 ऑब्जर्वेशन थे ना, हाँ। लोग नशे में रहते हैं, बोलते हैं किधर से आया, इधर से आया, 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, ये देख ये देख ये देख, हाँ। तो 15 5 75 इक्वल्स टू 5x + 25 + 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x विल बी इक्वल्स टू 50, माइनस हुआ ना, हाँ। चलो x विल बी इक्वल्स टू 10, तो आंसर आ गया 10। क्लियर। चलो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वेयर द क्लास लेंथ इज गिवन एज 5। मतलब आपका जो क्लास का जो लेंथ रहेगा, विद रहेगा, वो 5 का रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो मैं कितने क्लासेस इन डेटा से बना सकता हूं। तो इसके लिए क्या करने का, सबसे पहले एक लोएस्ट नंबर मार्क कर लो, कितना है लोएस्ट नंबर, क्योंकि आपको उसको भी तो क्लास में इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर हाईएस्ट नंबर ले लो, कितना है, चलो पहले इतना करो, फिर अपन बात करते हैं। तो छोटे में छोटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 40, देख ले 40 के नीचे कोई है नहीं है। बड़े में बड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है 73 है, 78, तो 40 एंड 78। तो अगर मैं 5 के क्लास बना रहा हूँ तो 40 से 45, 45 से 50 वैसा होगा ना, तो 80 तक जाएगा, 80 तक, ओके। तो इन शॉर्ट मेरे को 78 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मुझे 80 तक के क्लास बनाने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट मेरे पास 40 नंबर्स हो गए, 40 नंबर्स। ये 40 कैसा आया, ये 40 मेरा आया, 80 - 40 कर तो भी चलेगा, कोई वांधा नहीं। 78 - 40 कर तो भी चलेगा, कोई भी वांधा नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्या बोलता है। और मुझे क्लासेस कितने बनाने, ये तेरा इन शॉर्ट रेंज हो गया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का, ठीक है। अब मेरे को बात करना है यहाँ पे, क्योंकि देख अब थोड़े लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, सर मैंने 75 तूने क्यों नहीं लिया, 80 क्यों लिया। अरे भाई 78 तेरा एक नंबर है, वो भी तो क्लास में बैठेगा ना। तो अगर तू 75 तक क्लास बनाएगा तो कैसे चलेगा, वो 78 बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना। चलो अब रेंज तेरे को क्लास विद तेरा जो है या क्लास का लेंथ है वो है कितने का, 5 का। तो 40 नंबर्स है, 5 के क्लास बनाने हैं, तो 40 / 5 करेगा, तेरे को नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स मिल जाएगा। कितने क्लास इंटरवल्स बनेंगे, 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, क्वेश्चन 41, Question 41 says the mean of the first 3 terms is 17 and the mean of the next 4 terms is 21. Calculate the mean of 7 terms. चुपचाप कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तुझे। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन x बार c क्या बोलता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, राइट। तुझे 60 टर्म्स का तुझे फाइंड आउट करना है, n1 x1 बार। तो फर्स्ट 3 टर्म्स इज 17 और उसका मीन दे दिया, फर्स्ट 3 टर्म्स इन 17। तो x बार c 3 नंबर का मीन कितना था, 17 था, प्लस n2 x2 बार नेक्स्ट 4 इज 21, तो हो जाएगा ये 4 × 21 अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज टोटल मिला के 3 + 4 हो गए ना 7। आ जाओ देखते हैं 17 3 तो 17 3 बेटा तेरा कितना हो जाएगा, 51। तो उसको डाल दे m प्लस में, ओके। फिर 21 × 4 हो जाएगा आपका 84, टोटल आ गया 135 / 7। तो 135 / 7 करेगा तो आंसर आ जाएगा 19.28। कौन सा ऑप्शन है, 19.28, ऑप्शन डी। इजी, वापस अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। चलो क्वेश्चन 42,
The mean of a set of 20 observations is 18.3. If the mean is reduced by 0.6 when a new observation is added to the set, then the new observation is. देख आपको इसमें खाली एक ही फॉर्मूला से खेलना है और उससे आपका आंसर आ जाएगा. थोड़ा थोड़ा हौले हौले कैलकुलेशन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं. देख मीन के लिए तेरे को क्या चाहिए, सब्मेशन एक्स बाय एन. सो कहने से एक्स बार इज नथिंग बट सब्मेशन एक्स बाय एन, बराबर है. अब यहाँ पे मीन कम हो रहा है, ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, नया ऑब्जर्वेशन कितने का है वो सब फाइंड आउट करने का है, राइट. ये चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सब्मेशन एक्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज नथिंग बट एक्स बार इनटू एन. वो एन उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. अब मेरा यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू का डेटा अलग अलग मुझे दिया हुआ है तो मुझे उसी से कैलकुलेट करना है. अब देख ऑब्वियसली अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो तेरा एन भी बढ़ेगा और जो सब्मेशन एक्स से अगर पॉजिटिव डेटा है तो वो भी बढ़ जाएगा, बराबर है ना. तो अब यहाँ पे बोल रहा है वो तो बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है पर मीन कम हो रहा है. आ जाओ तो देखते, वही तो कैलकुलेशन करना है. तो ऑब्जर्वेशन कितने से रहेगा, न्यू ऑब्जर्वेशन कितने का रहेगा, वही अपने को फाइंड आउट करना है. आ जाओ तो क्या क्या डेटा दिया है. द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3. तो मेरे को ये दे दिया 18.3 और कितने ऑब्जर्वेशन थे 20. तो ये तेरा ओल्ड सबमिशन एक्स आ गया पुराने डेटा का जब तूने कुछ भी ऐड नहीं किया था. तो कर कितना आ रहा है ये 20 इंटू 18.3. तो ये आ गया आपका 366. अब उन लोग ने क्या बोला था, अगर तू इसमें एक ऑब्जर्वेशन ऐड करता है तो अगर तू इसमें ऑब्जर्वेशन अगर ऐड करेगा तो ये 20 का 21 हो जाएगा, बराबर है. और उसने साथ साथ में क्या बोला, द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6. और तेरा न्यू मीन क्या हो गया, तेरा न्यू मीन हो गया जो पुराना मीन था 18.3 उसमें से 0.6 घट गया. तो करो 18.3 माइनस 0.6 तो आ जाएगा ये 17.7. ठीक है. तो ये तेरा हो गया न्यू सबमिशन एक्स 17.7 इंटू 21. तो इसको मैं करूँगा तो आंसर आएगा 371.7. 371.7. तो अब मेरे पास नया सबमिशन एक्स है, मतलब टोटल ऑफ ऑल द एक्सिस इंक्लूडिंग द न्यू ऑब्जर्वेशन. एंड पुराना ऑब्जर्वेशन जब 20 था तब के एक्स है, तो दोनों एक्स को माइनस कर दे तो तेरे को तेरा आंसर आ जाएगा नए एक्स का. ठीक है सर, आज तो बहुत एक्स एक्स हो गया, आज तो मैं सदमे में चला जाऊँगा. हर जगह पे एक्स आ ही जाती है, क्या करें. न्यू सबमिशन एक्स, ओल्ड सबमिशन एक्स 371.7, 366, दोनों को माइनस किया आ गया 5.7 इज द न्यू ऑब्जर्वेशन. ऑप्शन सी. क्लियर. मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ चाहिए तो. देख तेरा एक्स बढ़ रहा है तो उसका सबमिशन भी बढ़ेगा अगर डेटा पॉजिटिव रहेगा तो, और तेरा एन भी बढ़ेगा. तो एक्स सबमिशन एक्स एंड एन से ही तेरा मीन बनता है, बराबर है. तो मुझे सबमिशन एक्स कैसे मिलेगा, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो मुझे पुराना मिल गया, नया का चीज़ें दी थी तो नया फाइंड आउट कर लिया, दोनों सबमिशन एक्स को माइनस कर दिया तो चेंज मिल गया मुझे. आ जाओ देखते हैं आगे. 43 प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ही फॉर्मूला क्या बोलता है, ध्यान से देखना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 2/3. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो ए यूनियन बी का आप लोग को फॉर्मूला बेसिकली आना चाहिए. तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला बेटा क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना. चलो तो ए यूनियन बी दिया हुआ है 2/3, ए कितना दिया हुआ है हाफ, बी कितना दिया हुआ है 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड आउट करना है तुझे. तो इसको मैं वो बाजू लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव, और बाकी चीज़ों को मैं इधर लेके आता हूँ. तो हाफ प्लस 1/3 और ये 2/3 उधर से आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -2/3. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1/3 -2/3 कम्स नथिंग बट -1/3.
अब इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, इधर 3 माइनस 2 क्रिस क्रॉस, राइट। आ जाओ, तो हो जाएगा 1/6। कौन सा ऑप्शन है? 1/6 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। इजी, बहुत बच्चे जैसा बेसिक सा क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए। फिर बोलता है, लोग बोलते हैं मैथ्स हार्ड है, ये हार्ड है। हाँ। चलो, if 6 coins are tossed simultaneously, find the probability of obtaining exactly 2 heads। तो सबसे पहले 6 कॉइन उछाले, तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी से नहीं बेटा, ये आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी अगर आपको समझ गई रहेगी तो क्वेश्चन 44 है ये, एन आपको दे दिया है 6 क्योंकि 6 बार सिक्के उछाले। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊं तो बेसिकली फॉर्मूला ऐसा कुछ है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। पर क्योंकि ये कॉइन टॉसिंग का क्वेश्चन है तो यहाँ पे बेटा आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है आधी इन अ सिंगल ट्रायल। टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी आधी, अगर हेड्स नहीं आएगा तो टेल्स ही आएगा। तो बेटा ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप एक चीटिंग वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है एन सी एक्स हाफ रेस टू एन। ये आपको कभी अप्लाई करना है? सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ये तेरे को कैसे पता चला ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि बिकॉज P इक्वल्स टू Q। समझा? याद रखना इसको, गधों की तरह पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्व मत करना, आंसर सेम ही आएगा। पर अपन स्मार्ट है, ठीक है। अपन कौन है? स्मार्ट है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो NCX। अब तेरे को यहाँ पे क्या पूछा, क्या है प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है बे? तो तेरे से पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो यहाँ पे P ऑफ X इक्वल्स टू 2 आ गया, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। चलो आ जाओ, बात करते इधर अब क्या बोलता है। तो n था 6, 6C2 हाफ रेस टू n कितना है? n है 6। सो 6C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 6 को 2 नंबर पीछे और 2 को भी 2 नंबर पीछे, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। एंड हाफ रेस टू 6, तो हाफ रेस टू 6 तो 2 का पावर 6 से स्क्वायर क्यूब रेस टू 4 5 एंड 6 आता है 64, तो 1/64। डेसिमल में आंसर चाहिए तो चुपचाप कर लो, 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 0.2343, 0.2343। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ई। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझी, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझी क्यों ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यूज़ किया और ना ही क्यों वो बड़ा वाला फॉर्मूला एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। सर उससे करता हूँ तो आंसर नहीं आता, अरे सेम ही आता अभी, पर क्योंकि ये तेरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दे। जैसे कि देख मैं तेरे को और एग्जांपल देता हूँ, तेरे बुक में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, तो भी यही चीज़ यूज़ होगा, क्योंकि बॉयज़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आधी, गर्ल्स आने की भी क्या होगी? आधी। और कोई जेंडर हम लोग कंसिडर ऐसे करते नहीं है ना, राइट। बॉयज़ एंड गर्ल्स ही नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं सॉल्विंग के वक्त। क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन 45, इफ x एंड y आर रिलेटेड एज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। तो x एंड y कैसे रिलेटेड? 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20, ओके। एंड द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज 12, देन द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज क्या? ये इज्जत से तू लर्न कर ही लेना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। तेरे पास बहुत सारी चीज़ों का पढ़ा हुआ है ये चीज़, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तेरे को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का याद करना है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का याद करना है, कोरिलेशन का याद करना है, रिग्रेशन का याद करना है। एग्जाम में 1 मार्क का दिखता ही, और ये प्रूफ है। मतलब बोलते हैं ना ये क्वेश्चन, ये पेपर ही तेरा इनकम्प्लीट अगर वो लोग ये चीज़ नहीं पूछते तो। 1 मार्क ये फ्री का है, फ्री का, ठीक है। तो ये क्योंकि तेरा क्वार्टाइल डिविएशन है तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए याद रखना, अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूँ, ओरिजिन की, ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस,
तो उसका कोई भी इंपैक्ट रहता नहीं है, उसकी इज्जत ही नहीं है डिस्पर्शन में। हाँ बट स्केल की इज्जत है, मतलब स्केल की मतलब कौन सा, वो जो अपन वापरते वो नहीं रे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसकी इज्जत है। पर कैसी इज्जत है, पॉजिटिव इंपैक्ट ओनली। कैसी इज्जत है, पॉजिटिव इंपैक्ट ओनली, ठीक है। वो नेगेटिविटी को वो लोग इग्नोर करते हैं। तू भी सीख, ये चीज सीखने की है लाइफ में, है ना। चलो समझा सबको, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ओरिजिन, स्केल। ओरिजिन की कोई भी इज्जत नहीं है, पीछे पीछे बोलो तो याद रहेगा, ओरिजिन की कोई भी इज्जत नहीं है, प्लस माई की कोई भी इज्जत नहीं है, स्केल की है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड की है। पर कैसी इज्जत है, पॉजिटिव वाली। नेगेटिविटी को करते वो लोग इग्नोर। तो चलो आ जाओ देखते हैं और चीजों को समझते हैं। 3x - 4y इक्वल्स टू 20। तो क्वेश्चन 45, 3x - 4y इक्वल्स टू 20। ओके, तब ये क्या हो जाएगा, देख सबसे पहले 20 की तो कोई भी इज्जत नहीं है, क्योंकि वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, अपने को फर्क नहीं गिरता है, ठीक है। वो ओरिजिन है, इंपैक्ट उसका नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया तेरा, 3 ऑफ x - 4 ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब -4 ऑफ y वो बाजू जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 ऑफ x इक्वल्स टू 4 ऑफ y, देयरफॉर ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x। और ऑफ x की वैल्यू अपने को दी थी, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो। ऑफ y, देख ये मल्टीप्लिकेशन है। अब तू बोलेगा सर इसको क्यों नहीं काटा, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये स्केल हुआ, ठीक है। वो 20 को क्यों काट दिया, क्यों ओरिजिन था, वो या तो इसमें प्लस होता या तो माइनस होता, अगर मैं रखता तो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये हो गया तेरा 3/4 इंटू 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आ गया आपका ऑफ y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ठीक है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल भूलने का नहीं। सर अभी तूने यार इसका इतना अच्छे से समझा, तो उसका भी एक बार समझा देना। चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऊपर वाले का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूँ तो ओरिजिन की भी इज्जत है, स्केल की भी इज्जत है, और उसमें पॉजिटिव विजिटिव कुछ नहीं है, उसमें पॉजिटिव विजिटिव कुछ नहीं। सर इसका मतलब क्या है, एक बार वो भी तो समझाते, चल समझाता हूँ। सपोज इधर गलती से -3/4 होता, तो माइनस भी क्या हो जाता, प्लस हो जाता। मतलब तू अगर -2 से मल्टीप्लाई कर या 2 से मल्टीप्लाई कर, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा नहीं। पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन 46 आ गया अपना वापस। प्रोबेबिलिटी घूम फिर के इसी पे आना है अपने को। बॉक्स कंटेन्स 20 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। तो एक सीनेरियो क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन 46, 20 बल्ब है, 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव निकले। तो अगर 4 डिफेक्टिव निकले तो 16 कितने निकलने चाहिए। स्मार्ट है यार, तेरे को कैसे आंसर पता चला 16 है। चलो 16 आंसर आएगा, ओके। आगे क्या बोलता है देख, 2 बल्ब्स आर चूजन एट अ रैंडम। तो 2 बल्ब को मैं चूज करता हूं रैंडमली। तो सबसे पहला अगर मैं सैंपल स्पेस की मैं तेरी अगर बात करूं, तो n ऑफ s तेरा सैंपल स्पेस। तू 2 बल्ब चूज कर रहा है, टोटल बल्ब कितने पास पड़े तेरे पास, 20, तो 20c2। मैं इसको सॉल्व कर ही लेता हूं, तो 20 × 19 अपॉन 2 × 1, तो आ जाएगा 190। तो मेरा डिनोमिनेटर तो मेरे को पता चल गया 190। ऑप्शन में देख तो डेसिमल में कैसे है, हाँ देख 19 है, मतलब 0 0 कट होगा, है ना। चलो आ जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। देख तू चूज कितने कर रहा है, 2 बल्ब चूज कर रहा है, और वो भी कैसे, तेरे को दिया था 2 बल्ब्स आर चूजन एट अ रैंडम। तो अब देख तू 2 बल्ब चूज कर रहा है, तो हो सकता है दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो सकता है दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है तेरे साथ। पर तेरे को यहाँ पे क्या बोलता है, तू ऐसे चूज कर कि उसमें से एक तो कम से कम, एक तो एटलीस्ट 1 कैसा निकले, डिफेक्टिव। कम से कम एक कैसा निकले, डिफेक्टिव निकले। तो कम से कम अगर एक डिफेक्टिव निकल रहा है, तो अब यहां पे सिनेरियोस क्या क्या बन सकते हैं वो समझ। तो ऐसा हो सकता है ना कि देख तू 2 बल्ब चूज कर रहा है, चूजिंग मैं यहां पे लिखता हूं चूजिंग टू। तो यहां पे तेरे को क्या बोल रहा है, कम से कम एक तो डिफेक्टिव निकलना ही चाहिए, कम से कम एक। तो मतलब अगर एक डिफेक्टिव निकला
तो फिर दूसरा अपने आप कैसे निकलेगा? दो चूज कर रहा है ना तू यार, तो दूसरा कैसे निकलेगा? नॉन डिफेक्टिव, इधर से आएगा दूसरा। ये एक सिचुएशन हुई, तू दो बल्ब चूज कर रहा है, एक डिफेक्टिव में से उठाया, तो फिर ऑब्वियसली दूसरा नॉन डिफेक्टिव में से आएगा। है पर ऐसा भी तो हो सकता है तूने दोनों चूज किए, वो दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकल गए। उसने तेरे को क्या बोला था कि तू कम से कम मेरे को एक डिफेक्टिव लाके दे, तो अगर कम से कम एक डिफेक्टिव आया तो फिर अपने आप दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा? नॉन डिफेक्टिव। पर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों के दोनों क्या आ गए? डिफेक्टिव आ गए, तो भी चलेगा, राइट। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट सिचुएशन जो है वन डिफेक्टिव एंड वन नॉन डिफेक्टिव, उसकी बात करते हैं। तो देख, तेरे पास 4 डिफेक्टिव बल्ब थे, उसमें से तूने एक चूज किया, बराबर है। एंड आएगा साथ में, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा। तेरे पास 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे, उसमें से तूने एक नॉन डिफेक्टिव चूज किया, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? कम से कम एक डिफेक्टिव की, ठीक है। जब तेरे पास एक डिफेक्टिव आएगा तो क्या तू करेगा? तो एक डिफेक्टिव आएगा तो ये तेरी प्रोबेबिलिटी रहेगी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तेरा 20C2। और ऐसा भी तो हो सकता है, या तो ऐसी भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये तो तेरी पहली सिचुएशन हुई जहां पे तूने जो सिलेक्शन किया वो एक ही डिफेक्टिव का था, पर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकल गए। तो तेरे पास 4 डिफेक्टिव थे, दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकले। सर नॉन डिफेक्टिव में से कुछ नहीं ना रे, ये तो दो ही चूज कर रहा है और दोनों के दोनों डिफेक्टिव है, खत्म बात। अपॉन 20C2। अब तेरे को डिनोमिनेटर तो पता ही है, ठीक है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ 190, ठीक है। 4C1 यानी कि हो गया 4, एंड ये हो जाएगा 4 × 16, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 4C2, तो 4 3 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, तो आ गया 70 डिवाइड बाई 190, काटो तो आ गया 7 डिवाइड बाई 19, ऑप्शन। ठीक है, मेन गेम इधर प्रोबेबिलिटी का ही है, जो तुझे समझना है। कम से कम एक डिफेक्टिव आया, तो कम से कम एक डिफेक्टिव आया, तो अगर सपोज एक ही डिफेक्टिव आया तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव। उल्टे का उसने इजी रखा था, मॉड्यूल में तो ज्यादा है, 4 डिफेक्टिव ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ के चलना, ऐसे क्वेश्चंस तो वापस एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले अटेम्प्ट में। तो ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो तेरी 2 मिनट तक ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 47। तो 47 सेज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, मतलब ये है r, एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy दे दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ byx? तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ r का सबसे पहला ही फॉर्मूला ही है कि तू r और कैसे फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 47 की मैं बात करूं, तो याद रखना r इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ bxy इंटू byx। और एक और चीज याद रखना, तीनों की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ये दो पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, ये दो नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव रहेगा, इसके लिए स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लिखा है, ठीक है। अब तेरे को r दिया है पॉजिटिव, ये भी दिया है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग है, खाली सॉल्व मत कर, समझ के सॉल्व कर, ठीक है। अब तेरे को byx पूछा है, तो आ जाओ उसको byx का आंसर दे देता है। ये दे दिया 0.32, ये दिया है 0.8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, और ये आ जाएगा byx स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ये BTS देख के BTS आर्मी खुश मत हो जाना। चलो आ जाओ, बोथ द साइड्स है इधर, हाँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करता हूँ, तो मैं 0.8 का स्क्वायर कर ही देता हूँ, आ जाएगा 0.64, इधर से वो छपरा हट जाएगा 0.32 इंटू byx, तो 0.64 डिवाइड बाय 0.32 करूँगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा byx का कितना आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन ए। अब इससे ना तेरा एक और दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े लोग है ना ये देख के बोलते हैं सर r की वैल्यू तो +1 और -1 के बीच में लाई करती है। सबसे पहली बात ये r नहीं है, वो देख, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी रह सकती है। अब सुन, दूसरी बात सुन, इससे ये सारी ये थियरी पॉइंट्स है जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो तेरे को याद रहने चाहिए। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 के ऊपर जा रहा है तो दूसरा 1 के नीचे ही होना चाहिए, और वो तू देख सकता है।
एक 0.32 है तो दूसरा 2 है, तो फिर वो बैलेंस आउट होगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ आर है जो तुझे याद होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग ने एक और चीज की थी ऊपर, अगर तेरे को याद रहेगा तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो रिग्रेशन लाइन का, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ आर में कवर होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन 48 इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर देख क्या बोलता है क्वेश्चन। द ग्रॉस मंथली पे, द ग्रॉस मंथली पे ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 15,000। ओके, आगे क्या बोलता है, इन ईयर 2020, तो 2020 में वो बेचारा कितना कमा रहा था, 15,000 कमा रहा था खाली। ओके, एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2023, ओके तो ये तेरी सैलरी है, ये तेरी सीपीआई है, 2023 की बात कर रहा है, था 155। आगे क्या बोलता है, with the base year as 2020, okay, if the employee is to be rightly compensated with the dearness allowance, how much he has to pay। डियरनेस अलाउंस मतलब क्या, कि तेरी पहली सैलरी कितनी थी और एज पर द करंट इन्फ्लेशन तुझे कितना मिलना चाहिए था, तुझे कितना मिलना चाहिए था माइनस तुझे सच्ची में कितना मिल रहा है। अगर तुझे एक्सपेक्टेशन से कम मिल रहा है, राइट, इन्फ्लेशन जितना बढ़ा उतनी तेरी सैलरी नहीं बढ़ी, तो तेरे को डियरनेस अलाउंस मिलता है, राइट। तो ये तेरा बेस ईयर था, तो बेस ईयर का हम लोग इंडेक्स 100 ही लेंगे। तो देखते हैं अब सबसे पहले उसका सैलरी कितना होना चाहिए था 2023 में एज पर द इन्फ्लेशन, एज पर द सीपीआई। तो देखते हैं, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ये, तो 155 इंटू 15,000 डिवाइड बाई आना चाहिए था 23,250, ये तेरा क्वेश्चन मार्क। तो उसको एज पर द करंट इन्फ्लेशन इतना पैसा मिलना चाहिए था, पर उसको कितना मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है, सो एज पर इन्फ्लेशन मिलना चाहिए था 23,250, बट ही इज ओनली गेटिंग 15,000 एज ऑफ नाउ, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो उसका डियरनेस अलाउंस कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था 8,250 रुपए का। देख, उन लोग ने हमसे किधर भी बोला नहीं है कि उसको अभी कितना मिल रहा है। सर सपोज अभी 20,000 मिलता रहता तो उसको, तो फिर उधर मैं 23,250 में से 20,000 माइनस करता, उसको मैं खाली डियरनेस अलाउंस के नाम पे 3,250 देता। ये सारे अलाउंसेस है। ठीक है, तूने अगर सुना रहेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चे, राइट, जो डियरनेस अलाउंस के नाम पे ये लोग देते थे। क्लियर, समझा सबको। अभी वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सपोज मैं उसकी सैलरी 20,000, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे बोलते हैं कि भाई करंटली उसको 20,000 मिल रहा है, तो डियरनेस अलाउंस कितना, तो फिर 23,250 में से खाली 20,000 ही माइनस होगा, 15,000 नहीं होगा। 15,000 क्यों लिया, क्योंकि कुछ दिया नहीं था हम लोग, तो वी आर अज्यूमिंग कि अभी भी उसको 15,000 ही मिल रहा है। ठीक है, चलो 49। देख देख अब भी बात किया था, देख देख अब भी बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ आर। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पहले दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन पहले, दो क्वेश्चन के पहले भी नहीं। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर एक्स वाई ऑफ वाई ऑन एक्स इज ग्रेटर देन यूनिटी। अगर एक ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, लेस देन 1a। इसके लिए याद रखने का चीजों को काम में आता है, कभी भी फ्री में मार्क मिल गया ना, दिखना। आ जाओ क्वेश्चन 50। इफ 4y minus 6x equals to 18 is the regression line y on x and the coefficient of correlation r तेरे को दे दिया है, then what is the value of regression coefficient x on y। तो ये तेरे को लाइन दे दिया है और यहाँ पे तेरे को पूछा है कि बी एक्स वाई का मेरे को भाई आंसर बता क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। ये इक्वेशन किसका दिया है तेरे को, y on x का दिया है, y on x का इक्वेशन दिया है, तो इधर से मेरे को मिल जाएगा मेरा b बाई एक्स, r दे दिया है, तो अपन वापस r इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके आंसर आ जाएगा। आ जाओ, तो 4y माइनस 6x इक्वल्स टू 18, 4y माइनस 6x इक्वल्स टू 18, देयरफॉर 4y इक्वल्स टू 18 प्लस 6x। मैं इसको y के फॉर्म में लेके आऊंगा तो y इक्वल्स टू 18 प्लस 6 बाई 4 x हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट, क्योंकि y ऑन x था तो तेरा बी वाई एक्स तुझे मिल गया, बी वाई एक्स इज नथिंग बट 6 बाई 4, यानी कि तेरा हो जाएगा, अगर तू कैलकुलेट करेगा तो आ जाएगा 1.5। ठीक है,
ये आपका स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। और जो 18 है ना, 18 को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये भी याद रखना, सब पूछते हैं किधर ना किधर एग्जाम में, ठीक है। चलो अब मेरे को r इक्वल्स टू, तेरे को पता है प्लस और माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करेंगे हम लोग। आ जाओ, तो यहाँ पे r कितना दिया है 0.8 इक्वल्स टू 1.5 बी एक्स वाई इंटू 1.5। वापस स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे, तो आ जाएगा ये 0.64 इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू 1.5। तो 0.64 तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू 0.4267 ऑप्शन बी। वापस देखो प्रॉपर्टी अभी जो पढ़ाया था तेरे को ऊपर, अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1, तो देख 1.5 गया तो ये देख 1 से कम है ना। क्लियर। चलो अभी मैथ्स ही मैथ्स है, वापस मैथ्स 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 आ गया सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल लिसनिंग। कैसा ना मस्त एकदम, एग्जाम में कैसा फील आता है ना। अभी मैच कर रहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक ही सेकंड में जज्बात बदल दिए, लॉजिकल रीजनिंग एक ही सेकंड में स्टैटिस्टिक्स। नहीं चलो आ जाओ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने भी पेपर वैसा का वैसा रखे, तुझे एकदम एग्जाम का फील मिले, हाँ ऐसा लगे कि तू भी एग्जाम में बैठा है। चलो आ जाओ। 9 फ्रेंड्स, अब तेरे को अभी सिखाया था, जब भी ऐसे लोगों को बिठाने की बात आए, ये लीनियर अरेंजमेंट है तो 9 लोगों को लाइन से बिठा दे, तो चलो बिठा देते हैं। क्वेश्चन 62 एंड 63 साथ में। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। अब लेफ्ट राइट मार्क कर देते हैं, क्योंकि वो लोग ने कुछ बोला नहीं है तो ऑब्वियसली नॉर्थ ही रहेगा, वो बाजू रहेगा लेफ्ट और ये बाजू रहेगा राइट, ठीक है। सोच समझ कर लोगों को बिठाना। L इज टू द राइट ऑफ M एंड इज थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N। तो सबसे पहले L किधर है, राइट ऑफ M, जिधर भी M बैठे उसके राइट में, एंड इज एट द राइट प्लेस एंड इट इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N। और N के तीसरे राइट में कौन है, M है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, K इज एट वन एंड ऑफ द रोज। तो चल एक इंफॉर्मेशन तो मेरे को मिली जो मैं प्लेस कर सकता हूं, K या तो यहां पे रहेगा, ये एंड पे रहेगा, या तो ये एंड पे रहेगा, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, पॉसिबिलिटीज है, तो साथ साथ में ही पॉसिबिलिटीज देख देने की। आगे Q इज सिटेड एडजेसेंट टू बोथ O एंड P। Q किसके बाजू में है, O के भी बाजू में है और P के भी बाजू में, मतलब कहने से O और P के बीच में Q बैठा रहेगा। O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K। ए आया मेरे लिए काम का है, देख O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K, जिधर भी K है उसके थर्ड लेफ्ट में। अब देख सपोज K इधर ऊपर बैठा है, तो क्या उसके लेफ्ट में जगह है, तो K इधर बैठ सकता नहीं है। तो चल एक तो चीज पता चल गई कि K इधर रहेगा और K के थर्ड लेफ्ट में, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। तीसरे लेफ्ट में कौन बैठा है, O, यहां पे बैठा है O। इतना समझा, ठीक है ओके। अब तेरे पास एक और चीज थी, O और P के बीच में कौन बैठा है, Q। Q इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ O एंड P। तो अब देख, अब दो चीज हो सकती है, अगर O इधर है तो O और P, तो सपोज P इधर हो गया कैनाई से, तो इधर आ जाएगा Q है। पर ऐसा भी तो हो सकता है, K इधर 1 2, O तो इधर बैठा ही था, पर 1 2 और P इधर भी तो बैठ सकता है। ये बाजू भी P हो सकता है, ये बाजू भी P हो सकता है, और बीच में कौन हो सकता है तेरा, Q। दो पॉसिबिलिटी है अभी, वापस साथ साथ में बना के चल, काम फटाफट होगा तेरा। ओके अब आगे क्या दे दिया है, O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K। जिधर से भी K बैठा उसके थर्ड प्लेस में O, ये तो लाइन हो गया था अपना। ओके J इज राइट नेक्स्ट टू L। J किधर है, राइट नेक्स्ट टू L, जिधर भी L बैठा है उसके राइट नेक्स्ट में ना, अपने पास तो दोनों नहीं है। ओके एंड टू द लेफ्ट ऑफ O, पर J किधर है, O के लेफ्ट में है, O के लेफ्ट में। तो ऑब्वियसली देख O के लेफ्ट में इधर जगह खाली है L के लिए,
सॉरी कौन था, जे के लिए, जे के लिए, जे इज राइट नेक्स्ट टू, हाँ जे के लिए, जे के लिए जगह खाली है यहाँ पे, पर इधर देख ओ के लेफ्ट में है तो क्यों बैठ गया, तो ये वाला वापस कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, समझा कि नहीं। तो देख तेरे 5 लोग बैठ चुके, अब तेरा काम आसान हो गया। तो वही तेरे को सोच समझ कर लोगों को बिठाना है तो ही काम आसान होगा, और समझना है चीज़ों को साथ साथ में कि पी इधर बैठा तो पी उधर भी तो बैठ सकता है, समझा। अब एक बार स्टार्टिंग से पढ़, तेरा काम हो जाएगा। L इज टू द राइट ऑफ M, L किधर है, M के राइट में, ठीक है, अभी भी ये नहीं है मेरे पास। N इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N, अभी भी मेरे पास ये लोग नहीं है, ओके। K is at the one of the row, Q is adjacent to OP, J is to the right next to L। हाँ देख ये यूज कर सकता हूं ना मैं, J is right next to L, J किधर है, L के एग्जैक्टली राइट नेक्स्ट, तो L इधर बैठ जाएगा, तो L के एग्जैक्टली नेक्स्ट राइट में कौन आ गया, J, ओके। आगे आगे आगे, हाँ अब मेरे पास था ना L इज टू द राइट ऑफ M, M के भी राइट में कौन है, L है, तो M के राइट में L, तो M उसके लेफ्ट में हो गया। तो देख कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 और 9, फिर काम खत्म ना अपना, चलो ओके। तेरे पास एक चीज थी, L इज टू द राइट ऑफ M, वो हो गया, एंड L इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N, N के तीसरे राइट में L है, तो L के तीसरे लेफ्ट में, तो L का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, इधर कौन आ जाएगा, N, खत्म, गेम ओवर। अब एक ही बंदा बचा, कौन बचा दिखते, आ जाओ। तो J K L M N O P, J K L M N O P Q, एक R बच गया ना, R बैठ जाएगा इधर, अरेंजमेंट मिल गया, खत्म। 2 क्वेश्चन सॉल्व, 5 मिनट लगे, 2 क्वेश्चन हो गए, 5 मिनट से भी कम लगे आई गेस, 3 साढ़े 3 मिनट लगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखते 2 क्वेश्चन क्या बोलता है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सबसे पहले M के इमीडिएट लेफ्ट में है R, कौन सा ऑप्शन है, B। क्वेश्चन 63, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 10 और 5, पांचवें पे कौन है, J, J है J, ऑप्शन बी, खत्म। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर देखो, साथ साथ में सारी पॉसिबिलिटीज करोगे ना तो और जल्दी आंसर आएगा, वरना घूमते रह जाओगे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 7 से 8 मिनट ये क्वेश्चन में लोगों के निकल जाते, ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा है ये। हाँ चलो आ जाओ, देखते हैं आगे। 64, मिस्टर एक्स वॉक्स 14 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आ जाओ, एक्स को लेके जाते हैं 14 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले मैं एक प्लस बना देता हूं, तो यहां से 14 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है वो। अब क्या बोलता है, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर भी सॉल्व किया था, तो यहां से वो 8 किलोमीटर वापस साउथ आ रहा है। फिर वो क्या करता है, देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वो क्वेश्चन में ईस्ट में लेके गया था, इधर किधर लेके जा रहा है, वो वेस्ट में लेके जा रहा है। देख 8 किलोमीटर वो यहाँ पे से ही गया वेस्ट में, ओके। फिर उसको आगे क्या इच्छा हुई करने की, अब वो भी देख ले। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो कहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है, और वापस पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ना, नॉर्थ वेस्ट लगाओ, बैठे बैठे पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका ये साइड मुझे फाइंड आउट करना है, ये 8 किलोमीटर का है, ये 14 ऊपर गया था, 14 - 8 ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर्स का, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10 किलोमीटर, तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए। इजी इजी पीजी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 65 आया, फाइंड द मिसिंग टर्म।
238 क्वेश्चन मार्क 3968 वाओ 238 क्वेश्चन मार्क 3968। तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर और स्क्वायर की पैटर्न वो लोग ने यूज की है। तो प्रीवियस नंबर है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 हो गया 3। 8 का प्रीवियस नंबर है 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 8। तो प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1, ये पैटर्न है। पैटर्न हमेशा देखने को भी अच्छा लगेगा, सुनने को भी अच्छा लगेगा। सर तेरे को कैसा पता वो लोग ने ऐसा किया है, नंबर्स अचानक बढ़े? तो ये मेरी चेकलिस्ट है। अगर नंबर अचानक बढ़ता है तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन देखने का। सर ये हम लोग को कहाँ पे देखने मिलेगा? मैं बार बार यूट्यूब के ऐड की तरह ही तुझे अभी करंटली मैं ये दे रहा हूँ। मेरा रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी अपने JKSC पे अपलोडेड है, ठीक है? प्लीज़ जाके सर्च करना CFC लॉजिकल रीजनिंग रिवीजन लेक्चर्स, आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है? आ जाओ, तो बात इधर करते हैं। तो प्रीवियस नंबर है 8, 8 स्क्वायर 64, -1 63। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये मेरा आंसर सही है या नहीं। तो 63 का स्क्वायर -1, तो 63 का स्क्वायर करता हूँ मैं, आ जाएगा 3969 -1, देखो आ गया 3968। तो 63 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन क्लियर, इजी। देख मेरे को 1-2 बच्चे ऐसे भी मिले जो मेरे को आके बोले सर मैंने तो आंसर 65 मार्क किया, दिया भी है, देख वो लोग ने गलती से क्या किया, स्क्वायर +1 कर दिया। तो इसके लिए हमेशा क्रॉस चेक करने का 5 सेकंड ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, पर तेरा 1 मार्क मिल जाएगा तेरे को। एक मार्क करते ही 40 पे पहुंचते, और 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 भी आ सकता है, ठीक है? अगर तेरे नसीब अच्छे रहे, प्रैक्टिस अच्छे से रहे, किया रहे तूने 90, तो तू आराम से मैथ्स में निकल सकता है। कुछ भी बोलता है ये, है ना? नहीं, सच्ची में आ सकता है। आ जाओ बात करते इधर। 66, if AM and GM of two positive numbers A and B are 12 and 12, then find the numbers। तो देख AM भी सेम, GM भी सेम, इसका मतलब तेरा नंबर भी क्या रहेगा? सेम सेम। ये बेसिकली बेटा वापस प्रॉपर्टीज ऑफ AM, प्रॉपर्टीज ऑफ GM। इफ ऑल नंबर्स आर इक्वल या कांस्टेंट, सपोज मैं बोलता हूँ कांस्टेंट बोल देता हूँ, इफ ऑफ ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट के, तो तेरा AM भी के, तेरा GM भी के, और तेरा HM भी के। मतलब मैं सपोज चल बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, 5 5 5। तो इसका AM क्या आएगा? कैलकुलेट मत कर, 5 आएगा। GM क्या आएगा? 5 आएगा। HM क्या आएगा? 5 आएगा। तो तेरे को बोला है कि भाई AM भी 5 है, GM भी 5 है, तो नंबर क्या हो गए? 5 5 5। सर तेरे को कैसे पता चला? अरे क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो मेरे को पता चल गया, मैं सर हूं ना, इसके लिए तेरे को सिखा रहा हूं। लोग क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। 18 + 6 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। अरे वाह आया। अब मैं चलो ना 18 × 6 करता, टाइम वेस्ट करवा रहा है तेरे से वो। फिर बोलते हैं पेपर छूट गया, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं। कंसेप्ट क्लियर रखो, इजी। आ जाओ, 66 का आंसर है डी। चलो 67 थियरी क्वेश्चन। इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। तो तेरे तू अगर CF का कर्व बनाता है, CF का कर्व, तो ये तेरा एक्स एक्सिस, ये तेरा वाई एक्सिस, यहाँ पे तेरे क्लास के इंटरवल्स आते हैं, और ऑब्वियसली CF का कर्व आ रहा है, तो तू तेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंटेड करेगा, पर कैसी वाली? CF वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा CF। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। वाई एक्सिस पूछा है, वाई पे तो CF ही आएगा। आ जाओ बात करते हैं 68। इफ द रेंज ऑफ द डेटा इज 20 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो रेंज तेरे को दिया है, रेंज इज नथिंग बट हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो क्या देता है? रेंज इज 20, स्मॉलेस्ट इज 5। रेंज इज 20, स्मॉलेस्ट इज 5। तो उसको मैं उधर लेके जाता हूँ, तो हाईएस्ट क्या आ जाएगा? 20 + 5, 25। ऑप्शन बी। कितना इजी था, 3 सेकंड का भी नहीं था ये तो। आ जाओ 68 हो गया। क्वेश्चन 69।
इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये एकदम इजी था तेरे को, ये मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देता हूँ, इसी में तेरा आंसर छुपा हुआ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है सर? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको तू सबमिशन एफ करता रहता है ना, हो गया, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो देख ले, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी कटा टू टोटल फ्रीक्वेंसी, ये रहा ऑप्शन बी। अब इसमें ना एक और चीज है, और वो है तेरा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब सपोज इधर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो कुछ नहीं, इसी चीज को तू इंटू 100 कर देता तो भी तेरा आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 70। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 पत्ते में से एक ही कार्ड चूज किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली तो कॉम्बिनेशन मत यूज कर, 52C1 छी क्यों करना है? तो डिनोमिनेटर तो तेरा 52 है, उतना तो पता चल गया। तो देख सकता है, अब न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग कार्ड और अ क्लब कार्ड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ क्लब कार्ड और अ किंग कार्ड, और आया मतलब ये यूनियन आया, यूनियन ए यूनियन बी। तेरे को देखना पड़ेगा। अभी इसमें ट्विस्ट क्या रहेगा? एक ट्विस्ट ये रहेगा कि देखना पड़ेगा इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है क्या, कोई कॉमन पत्ता है क्या। तो अब देखो, हिंदी में समझते तो देख कितना मस्त इजीली मक्खन के जैसे सॉल्व होता है। क्लब कार्ड, क्लब मतलब अपन फल्ली बोलते, फल्ली। मैं तो जुआरी हूं भाई प्रॉपर। ये देख, ये फल्ली का पत्ता ऐसा रहता है मस्त ब्लैक कलर का, देखा रहेगा ना सबने कि नहीं देखा? नहीं देखा तो सीए फाउंडेशन को बाजू में रख के पहले ये करना, ड्रीम 11 पे टीम बनाना। ठीक है, आ जाओ। तो ये तेरा क्लब बराबर है। तो क्लब के पत्ते कैसे कितने रहते हैं तेरे? क्लब के पत्ते रहते तेरे 52 डिवाइड बाय 4 करेगा, तेरे वो क्लब भी आ गए, स्पेड भी आ गए, हार्ट भी आ गए, डायमंड भी आ गए। तो ये तेरे क्लब हो गए। ये क्लब कितने हो गए तेरे? 13 हो गए। ठीक है, चल आ जाओ। ओके, तो 13 क्लब्स रह गए, 13 डिवाइड बाय 52। ठीक है, और अ किंग, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है 52 पत्ते में से 4 पत्ते किंग निकल जाए। 4 डिवाइड बाय किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाय 52। पर इनमें कोई कॉमन रहेगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली उन 13 पत्तों में किंग ऑफ क्लब्स भी तो होगा। तो देखना, तो अगर 13 पत्ते गिन रहा है तो उसमें भी किंग रहेगा और इसमें भी किंग ऑफ क्लब्स रहेगा, तो कॉमन पत्ता हो ना, तो एक पत्ता तेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो 13 + 4 17 -1 16 बाई 52। कौन सा ऑप्शन है? 16। देख, उसने 17 भी दिया था, तो अगर भूल जाता तो सी मार्क करके आता, जबकि तेरा आंसर वो रॉन्ग होता। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 71। वापस मेरा ये है ना, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरे। मैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के 10 मिनट तक ये बात समझाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है बेसिकली। तो बेटा ये जो है ना आपका, दो चीज़ें रहती है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे तो देख तेरे को पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर मैं पैरामीटर्स की नॉर्मली बात करूँ कि उसके पैरामीटर्स कौन से, जिसकी वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना है, उसकी वो पहचान है, वो है तेरा एन और पी। दो पैरामीटर्स है, बाई पैरामेट्रिक बोलते हैं उसको, बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट। अब बात करते हैं तेरे पॉइसन की, तो पॉइसन है यूनिपैरामेट्रिक, एक ही सिंगल पैरामीटर है एम एम। और अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेटा पैरामीटर्स है वो तेरा वापस बाय पैरामेट्रिक कंटिन्यूस है। कैसा है? बाय पैरामेट्रिक कंटिन्यूस। तो इसके दो पैरामीटर्स, एक तो है मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, मीन और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन पैरामीटर्स। पर इसमें अब ट्विस्ट क्या है ना, ट्विस्ट ये है कि जब तू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सिंबॉलिकली मीन तो दिखता ही दिखता है, पर स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिखता है, वेरिएंस बन जाता है। देख, मैं तेरे को यहाँ पे समझाता हूँ, अब लिख के समझाता हूँ एक बार। तो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मैं खाली तेरे को कोई भी पूछेगा भाई पैरामीटर्स क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल है बात, एकदम सिंपल है। तेरे को मीन को याद रखना है, या पे वो लोग म्यू बोलते हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं।
पर अगर तेरे को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन कर, तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसे पता चलता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखता है, x फॉलोज n म्यू कॉमा वेरियांस, वेरियांस, बस यही तो ट्विस्ट है इधर। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। कैसा हुआ? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो ऐसे ही सादा सादा दे दिया। अब यहां पे एडिटिव प्रॉपर्टी की तू जब बात करता है तो उसका भी दो चीज होगा, या तो पैरामीटर्स का तो एडिशन कर, या तो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसका तू एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर। तो बस ये क्वेश्चन उसी पे बना है जो कि तेरे को ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है? तो देख, if x and y are independent normal variate with mean and standard deviation mu1 mu2 standard deviation 1 standard deviation 2 and then for x equals to z equals to x plus y। देख क्या तेरे को इधर किधर भी वो लोग ने ऐसा कुछ दिया है x plus y follows n, नहीं। अगर ऐसा दिया रहता था ना, ऐसा, तो वेरिएंस आता, वेरिएंस तो क्या था? साथ में वेरिएंस आता, पर यहां पे ऐसा दिया नहीं है, ठीक है? तो अब सबसे पहले म्यू तेरा यहाँ पे x प्लस वाई तू करने को जाएगा, ऐड हो रहा है, तो म्यू1 प्लस म्यू2 ऑब्वियसली होगा, म्यू1 प्लस म्यू2 डिवाइड बाई 2। ये तो यहाँ पे गलत ही है, कुछ भी एक ही तेरा ऑप्शन बनता है ए। और तो देख भी सकता है वो लोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, नॉर्मली पैरामीटर्स का ऐड किया है, तो लोग ने स्टैंडर्ड डिविएशन यूज किया। देखो बहुत गौर करने वाली बात है ये। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब छपरा ना, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस। तो देख सकता है अंदर वेरिएंस 1 प्लस वेरिएंस 2 और छपरा दिया है। सर पर अगर ये ऐसा फॉलोस दिया रहता तो क्या आता? तो फिर ये छपरा नहीं आता, मैं तेरे को वही बोल रहा हूं चिल्ला के। समझा? वापस रिपीट कर रहा हूं, समझा? अगर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता तो ये छपरा नहीं आता, वेरिएंस में रिप्रेजेंटेशन करना है। तेरे नसीब अच्छे है कि उसने थोड़ा सा सिंपल दिया तेरे को, थोड़ा भी पढ़ के गया रहता ना तो भी मार्क कर लेता, पर लोग इसमें गड़बड़ करते हैं और 1001% गड़बड़ करते हैं। चलो, तो 71 का आंसर है ऑप्शन 72। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अभी बोला, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस, राइट? तो यहाँ पे तेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये तो इजी अपन ने पहले भी किया था, आ जाओ। तो तेरे को मीन दिया है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है तुझे 3, तो इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे को वेरिएंस मिल जाएगा ना 9। तो अभी सिखा था एन पी क्यू अपॉन एन पी इक्वल्स टू 9/10, कटा q इक्वल्स टू 9/10 आ गया, तो q 9/10 तो p 1/10। अब मुझे क्या चाहिए था? n चाहिए था, n, तो सब्स्टिट्यूट कर आंसर आ जाएगा वी नो एन पी इक्वल्स टू 10 एंड वी नो अभी दिया था p की वैल्यू क्या है? 1/10 इक्वल्स टू 10, तो 1/10 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो क्या इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 100। इजी, 10 सेकंड का सॉल्यूशन खत्म, काम खत्म। क्या डेटा दिया है देख, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द आंसर। चलो, इंडेक्स नंबर थियरी। एन इंडेक्स नंबर constructed to measure the relative changes in the price of an item of a group is called what? तो देख, constructed to measure the relative change, तेरे को relative change करना है किसमें? प्राइस में, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन 73 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 74, फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, ये क्या है? ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मतलब वो तेरा टेस्ट करता है कि एक इंडेक्स नंबर कितना स्ट्रॉन्ग है। याद रखना, फिशर एक अकेला बंदा है जिसने अकेले ने 4 में से 3 टेस्ट सेटिस्फाई किए हैं, सबसे ज्यादा। इसके लिए फिशर को तो आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं,
ठीक है, तो अगर 4 में से 3 किया तो कौन सा नहीं किया, बस तेरे से वही पूछा है, तो याद रखना उसने सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई किया नहीं है। ठीक है, चलो 75th, if the last year's index is 110, past year's is 108, then what is the Fisher's index number? तो Fisher is nothing but root of last year into past years. Fisher is nothing but root of 110 into past years कितना था 108, कर लो 108 इंटू 110 का स्क्वायर रूट 108.99, कौन सा ऑप्शन है, सी। चलो 76, वापस इंडेक्स नंबर, फ्रॉम द ईयर 2013 to 2023 CPI was increased from 135 to 180, तो आ जाओ लिख लेते इतना पहले, तो CPI बढ़ गया, CPI कितना बढ़ा 135 to 180 from the year 2013 to 2023. During this period, the salary of the employee as per the pay commissions was revised from 23,000 to 29,500. तो सैलरी तेरा कितने से कितना हो गया, 23,000 से हो गया 29,500। अब देख, इसमें तेरे को डियरनेस अलाउंस भी पूछ सकता है, रियल इनकम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछता है देखते हैं। इन रियल टर्म्स एन एम्प्लॉय शुड गेट द एडिशनल अमाउंट टू मेंटेन इस प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन शॉर्ट देख, वापस डियरनेस अलाउंस ही पूछा है। अभी मैंने तेरे को सिखाया था, सबसे पहले क्या करेगा, सच्ची वाली उसकी सैलरी उसको कितनी मिलनी चाहिए थी, तो ये तो देख, ये तो रियल में मिल रही है, पर एज पर इन्फ्लेशन उसको कितना मिलना चाहिए था, कैलकुलेट करते हैं। तो एज पर CPI ऑफ 2023 उसको कितना मिलना चाहिए था, 23,000 इंटू 180 अपॉन 135। तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं, 23,000 इंटू 180 डिवाइड बाय 135, उसको मिलना चाहिए था 30,666.66 रुपीज़। उसको सच्चे में बेचारे को कितना मिल रहा है, अन्याय हो रहा है उसके साथ, 29,500 मिल रहा है। तो एडिशनली उसको कितना मिलना चाहिए था, और एडिशनली ही शुड गेट 1166.66 रुपीज़। 1150 रुपये के लिए उसने अपने पास कैलकुलेशंस करवाया और अपने को 1 मार्क दे के भी गया। मैं होता तो उसको बोल देता, ये ले तू ही सॉल्व करके दे दे मेरे को, ले 1150 रुपये। क्लियर, सबको क्लियर? चलो आ जाओ, मैथ्स 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 मैथ्स, वापस मैथ्स मैथ्स। आ जाओ 89th, ब्लड रिलेशन। क्या बोलता है क्वेश्चन, इन अ फैमिली देर आर 6 members, A and B are a married couple, A being the male member। तो आ जाओ क्वेश्चन 89, बोलता है A और B की शादी हो गई, अपने को बुलाया नहीं, और बोलता है A मेल मेंबर है, A मेल तो B फीमेल। आगे बोलता है D इज द ओनली सन ऑफ C, D किसका बेटा है, C का बेटा है, ना अपने पास D है ना आगे, आगे देख, एंड इज द ब्रदर ऑफ A, और C कौन है, भाई है, किसका भाई है, A का भाई है, और उसके बेटे का नाम क्या था, D इज द ओनली सन ऑफ C। आगे क्या बोलते हैं, E इज द सिस्टर ऑफ D, E कौन है, D की भी बहन है, ओके। B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, F की बहू कौन है, B है, B। डॉटर इन लॉ मतलब सबसे पहले मेरा कोई बेटा रहेगा, वो रहेगा A, और उसकी बीवी B, बन गया ना मेरी बहू, मेरी डॉटर इन लॉ। आगे F हुज हस्बैंड इज डाई, और F का पति मर चुका है, तो F का पति मर चुका है, तो ये विधवा हो गई ना, फीमेल हो गई है, ओके।
हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सिखाया था पीछे वाले के पॉइंट ऑफ से आगे वाले को देखो, बी के हिसाब से सी कौन लगता है उसका, बी के हिसाब से सी, बी के हिसाब से सी है। तो ए मेरा पति है और वो मेरे पति का भाई है, तो पति के भाई को क्या बोलते हैं, या तो देवर या तो जेठ, ब्रदर इन लॉ। हिंदी में दो चीज है, या तो देवर जी या तो जेठ जी। सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आए जो कि मैंने तेरे को अच्छे से सिखाए थे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 90, पॉइंटिंग टू अ लेडी सुरेश सेड शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू लेडी। तो पॉइंटिंग टू अ लेडी सुरेश सेड, तो किधर तो भी लेडी होगी और किधर तो भी सुरेश होगा। तो सुरेश क्या बोलता है उस पर फोकस करते हैं। सुरेश ने किधर तो भी माई बोला था, माई, माई क्या, माई माई सन्स वाइफ्स डॉटर। तो पहले तो ये बता देते हैं, माई सन्स वाइफ्स, मेरे बेटे की बीवी मेरी बहू लगी ना, माई सन्स वाइफ्स डॉटर, ठीक है। और वो सुरेश क्या बोल रहा था, वो लेडी कौन लगती है, वो लेडी कौन लगती है, शी इज द मदर, किसकी माँ है वो, ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, मेरे बेटे की बीवी की बेटी की माँ। तो मतलब मेरी पोती की माँ, तो मेरी पोती की माँ तो यही हुई ना, ये कौन है, यही तो वो लेडी है। देख सकते हैं, तेरे को देखना है तो पॉइंटिंग टू लेडी, मैं वो नीचे वाली को पॉइंट कर रहा हूँ और बोलता हूँ शी इज द मदर, वो माँ है, किसकी माँ है, मेरे बेटे की बीवी की बेटी की वो माँ है, खत्म। तो क्या बोलता है आगे, क्या बोलता है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू लेडी, लेडी के हिसाब से वो सुरेश कौन लगता है। तो लेडी जो है ये सुरेश को क्या बुलाएगी, तो मेरे पति का बाप, मेरा तो ससुर जी लगा, फादर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। आ जाओ आगे देखते हैं क्वेश्चन 91। क्या बोलता है क्वेश्चन 91, मिस्टर एक्स वॉक्स नॉर्थवर्ड्स, वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड अ लिटल लेफ्ट, फाइनली आफ्टर वॉकिंग 500 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ। अब देख थोड़े लोग क्या करेंगे, ऐसा हाथ फैला कर खड़ा रहेंगे, वो प्लस वगैरह बनाएंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, उससे भी एक मस्त इजी शॉर्टकट बताता हूँ तेरे को मैं, ठीक है। तो देख याद रख कि वो एक्स किधर जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, किधर जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था। उसने सबसे पहले क्या किया, एक राइट लिया, फिर एक लेफ्ट लिया, फिर वापस एक लेफ्ट लिया, एक राइट लेता है, फिर एक लेफ्ट लेता है और फिर वापस एक लेफ्ट लेता है। तो ध्यान रखने का, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, तेरे को मैं सिखाता हूँ। देख तेरे को मैंने सिखाया था, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। हे कहना इसे मैं वापस उधर का उधर आ गया, तो कहना इसे एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अरे तू एक राइट मार रहा है, फिर तू एक वापस लेफ्ट मार रहा है, ये ले ये मैंने राइट मारा और फिर मैंने वापस लेफ्ट मारा, तो मैं जिधर था उधर का उधर ही आ गया ना। ये देख मैंने राइट मारा, वापस लेफ्ट मारा, वापस राइट मारा, वापस। तो एक राइट एक लेफ्ट की पैर बन के वो कैंसिल हो जाती है, तो कर दे, कैंसिल कर दे। इन शॉर्ट उसने क्या लिया, एक लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट। तेरा आंसर आ जाएगा वेस्ट, खत्म, गेम ओवर। ओवरली सॉल्व होता है, करने की भी जरूरत नहीं है। तेरे पे भरोसा नहीं है, हम लोग तो तेरे को अभी पहली बार देख रहे, कुछ भी पढ़ाता है मेरे को तो डायग्राम के साथ प्रूफ करके देख, ये ले ये देख ले, ये दे, नहीं भरोसा है देख ले, मेरे को सब वे से पढ़ाना आता है। अच्छा तो मैं नॉर्थ जाता हूँ, तो ये पॉइंट है, मैं यहाँ से नॉर्थ गया, फिर मैंने क्या किया, राइट मारा, तो नॉर्थ का राइट क्या आता है, ईस्ट, तो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। फिर मैंने लेफ्ट लिया, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या आता है, वापस नॉर्थ आता है। और नॉर्थ से वापस मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट ले रहा हूँ, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या आता है, हे देख कौन सा डायरेक्शन है उधर, बोल 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 बोल, नहीं थोड़ा दिमाग से पढ़ने का टाइम बचता है, डायग्राम भी नहीं यूज करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आता है। याद रखोगे आज के बाद, एक राइट एक लेफ्ट, उड़ा दो, सीधा उड़ा दो, ठीक है, क्लियर, पक्का समझा। चलो आ जाओ 92, pointing to a lady a man said the son of her only brother is the brother of my wife, how is lady related to man। वापस ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, अपनी बुक में पढ़ा हुआ है और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया। जितने भी लोग मेरे साथ थे पहले से वो लोग डायरेक्ट आंसर मार्क करके आए इसका, ठीक है, सेम क्वेश्चन, नो चेंज। आप देख के
देख भी सकते हो, अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, राइट। बट बाकी के लोग, जो लोग देख रहे हैं, आ जाओ, जैसे पहले समझा था वैसे ही वापस मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन 92, क्वेश्चन 92, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, तो किधर तो भी लेडी है, किधर तो भी मैन है। वो मैन वो लेडी को देख के क्या बोलता है, ध्यान से देखना, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, लेडी के सन की बात कर रहा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसके अकेले भाई के बेटे की, तो उसका किसका, लेडी का, तो लेडी का कोई तो अकेला भाई है और वो भाई को कोई तो बेटा है। तो इसका क्या रे, इसका क्या, द सन ऑफ ओनली ब्रदर इज मतलब इक्वल्स टू, यही कौन है, उसके भाई का बेटा कौन है, इज द ब्रदर, वही भाई है। अरे तो किसका भाई है, ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी का तो भाई है। मेरी बीवी मतलब मैं कौन, मैन ना, तो मेरी बीवी जो है ना, उसका भाई कौन है, लेडी के भाई का बेटा है, खत्म। जो अभी एक सेंटेंस में मैं पूरा कंप्लीट करता हूं, जो लेडी के भाई का बेटा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज, ये कौन है, इज द ब्रदर, यही भाई है। ये तो किसका भाई है, मेरी बीवी का। तो मतलब तू मेरा कौन हुआ, साला, तो मेरा कौन हुआ, साला, ब्रदर इन लॉ। ऊपर वाला तेरा पप्पा मेरा ससुर जी हुआ ना, और ये हो गई ससुर जी की बहन, तो आंसर आ गया सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ऑप्शन बी। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, इजी। चलो हिंदी में सॉल्व करो, बहुत काम आसान होएगा। क्वेश्चन है 93, आ जाओ। हाया मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो देख ले, ये तेरा क्लास कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस के लिए मीडियन के स्टेप्स तेरे दिमाग में आने चाहिए सामने। आ जाओ, तो सबसे पहले देख, क्या क्लासेस कंटिन्यूस है, नहीं है तो बना, यही तेरा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। हाँ सर, क्लासेस सारे कंटिन्यूस है, बराबर है, एकदम बराबर है। तो 0 से 10 से लेके 40 से 50 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब सबसे पहले तेरी फ्रीक्वेंसीज जो है वो मार्क कर ले, 3, 5, 20, 12, 7, 3, 5, 20, 12, 7। अब ये करने के बाद तुझे सी एफ का कॉलम चाहिए रहेगा, तो सी एफ का कॉलम बना दे, 3, 8, 28, 40, 47। तो तेरे को सबमिशन ऑफ एफ भी मिल गया 47, यही है तेरा बड़ा एन, दैट इज नथिंग बट सबमिशन एफ। अब सबसे पहले तेरे को मार्क करना पड़ेगा मॉडल मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, मुझे मिलेगा n/2 करके, तो कर, n कितना है 47 डिवाइड बाई 2, 23.5। तो 23.5 किधर लाई करेगा वो देख सर, 23.5 इधर लाई करेगा, ये हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास, ठीक है। सो देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब गंदा वाला फॉर्मूला मीडियन का क्या था, फॉर्मूला बोलते जा और लिखते जाने का, L1 प्लस h इंटू n/2 माइनस सी एफ ऑफ द प्रीवियस क्लास, f ऑफ द करंट क्लास, ये याद रखने का। तो L1 लोअर लिमिट कितना है बेटा तेरा 20, हाइट कितना है, हाइट 20 और ये है तेरा 10, n/2 तूने फाइंड आउट किया था 23.5। सी एफ ऑफ द प्रीवियस क्लास लेने का हमेशा, प्रीवियस क्लास, तो ये प्रीवियस क्लास कौन सा है 8 माइनस 8, एंड f ऑफ द करंट क्लास, f ऑफ द करंट क्लास, f ऑफ द करंट क्लास कितना है 20, ठीक है। सॉल्व कर, तेरा आंसर आ गया, करो 23.5 माइनस 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 इंटू 10, 7.75 प्लस 20, मीडियन का आंसर आ गया 27.75, 27 3 मिनट तू दे सकता है क्वेश्चन को, और आराम से, अगर तेरे स्टेप्स क्लियर है, तेरा कैलकुलेशन फास्ट है, तो आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर, तेरे को चीज़ों को ध्यान रखना है। कंटिन्यूस क्लास नहीं रहता तो कंटिन्यूस सबसे पहले बनाता, बहुत इंपॉर्टेंट था, सी एफ फाइंड आउट करता, फिर फॉर्मूला अप्लाई करता, सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए तेरे को, ठीक है। चल आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94।
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी काफ़ी मस्त शब्द है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये कब यूज़ करता है? जब हिस्टोग्राम में अनइक्वल क्लासेस हो तब, मतलब 0 से 5, फिर डायरेक्ट 5 से 10 है, 5 से 15, 15 से 45, 45 से 50, तब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी काम में आती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला वापस तेरे को याद रहना चाहिए, जो कि है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, ऑप्शन ए। क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास का लेंथ है उसको डिवाइड कर तेरे को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन 95, if two variables x and y are related by 2x minus y equals to 3 and median of x is 10, then median of y, देख आया दूसरा क्वेश्चन आया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का, और ये मीडियन है, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करना पड़ेगा तेरे को, ओरिजिन एंड स्केल सिखाया था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन का इंपैक्ट है, इज्जत है, स्केल की इज्जत है, क्या खाली पॉजिटिव नहीं, कैसी भी नेगेटिव भी चलेगी, इज्जत होनी चाहिए। समझा कि नहीं समझा? डिस्पर्जन में ओरिजिन की इज्जत नहीं, स्केल की इज्जत है। चल मैं साथ साथ में सॉल्व करता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसी इज्जत होती है, कैसी इज्जत नहीं होती है। आजा क्वेश्चन 95, दूसरा क्वेश्चन है। मैं एक एग्जाम में एक बोला था, उसने 2 दे दिया तेरे को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का, और फ्री का मार्क है, फ्री का 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब बात करते हैं यही 3 की। देख अगर ये डिस्पर्जन होता, ये QD MD SD ये सब होता, तो ये 3 की इज्जत नहीं होती, काट ही देता उसको मैं, ओरिजिन। पर इधर ये तो सेंट्रल टेंडेंसी इज्जत है, उसकी वैल्यू है, तो काट सकता नहीं है। चलो अब बात करते हैं इधर, मीडियन ऑफ x इज 10, तो 2 मीडियन ऑफ x माइनस मीडियन ऑफ y इक्वल्स टू 3। 3 को मैं नहीं काटूंगा, डिस्पर्शन होता तो कब का काट देता मैं, नहीं इज्जत है। चलो आ जाओ, बात करते इधर, मीडियन ऑफ x इज 10, तो 2 इंटू 10 माइनस मीडियन ऑफ y इक्वल्स टू 3। अब मीडियन ऑफ y को मैं पॉजिटिव डाल देता हूँ, वहां पे लेके जाता हूँ, मीडियन ऑफ y इक्वल्स टू एक आ जाएगा 20 माइनस 3, 3 उधर जा जाएगा ना, बराबर है। सर इसमें स्केल किधर आया? ये देखिए मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सर अगर मैं इधर माइनस 2 इंटू 10 करता तो फिर माइनस 20 आता, पर अगर सर ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मैं खड़ा रहता तो फिर माइनस 20 नहीं 20 आता। नेगेटिव इंपैक्ट नहीं, खाली पॉजिटिव इंपैक्ट चेंज ऑफ स्केल का। -2 से मल्टीप्लाई कर या 2 से मल्टीप्लाई कर, आंसर रिमेन्स द सेम। डिस्पर्जन में, सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो समझ जा। तो तेरा आंसर क्या आया? 17। अब तो है ना उधर जाके ऑप्शन में ढूंढेगा, बस एग्जाम में यही प्रिंटिंग मिस्टेक था। देख 17 ऑप्शन में नहीं, तू गलत है नहीं, वो लोग की गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो जिधर भी 17 दिखे वहां तेरा आंसर। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान रखना ये चीज का। पर तेरे को चीजें आई होप क्लियर है। ठीक है, समझा? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, बराबर से सॉल्व करना। क्वेश्चन 96, if mean and median of moderately skewed asymmetrical distribution are 26.8 and 27.9, the most probable mode is, तो सिखाया था mode is nothing but, देख एक ही अटेम्प्ट में उसने 2 क्वेश्चन दे दिए एक ही कंसेप्ट से। कैसे लोग हैं, इंस्टीट्यूट भी कैसा कैसा काम करती है। अच्छा है ना, तेरे को क्या है, मैं एक ही तो फॉर्मूला लर्न करके गया था, ऐसा मत बोलना भाई कोई, हाँ कुछ भी ना मत बोल। 3 मीडियन, तो मीडियन कितना है 27.9, -2 टाइम्स 26.8। करो बैठे बैठे क्या करे कैलकुलेशन। 27.9 इंटू 3 इक्वल्स टू m प्लस 26.8 इंटू 2 इक्वल्स टू m माइनस 30.1 मेरा आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। चलो आगे, क्वेश्चन 97 क्या बोलता है? 97,
a perpendicular drawn from the point of intersection of the two ogives। तो सपोज मैं बोलता ऐसा, मैं दो ओजाइव कर्व बना रहा हूँ, एक तो लेस देन सी एफ का बनेगा और दूसरा मोर देन सी एफ का बनेगा। तो ये दो ओजाइव का अगर मैं परपेंडिकुलर निकलता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा सेकेंड क्वार्टाइल, यानी कि Q2, यानी कि मीडियन। देख, रट्टा नहीं मारने का, समझने का। ओजाइव इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और CF तो किसके लिए यूज करता है, CF तो यूज करता है मीडियन के लिए। तो कभी भी तेरे को पूछे ना तो याद रखने का कि मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज, ऐसा अगर तू मॉड्यूल रेफर करेगा ना तो ऐसा लिखा मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज। तो यहाँ पे अपना आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज Q2, 97 का ऑप्शन है ए। चलो 98। A number is selected from the first 30 natural numbers. What is the probability that the number would be divisible by 3 or 8? देखिए ये क्वेश्चन और 100 वापस ही रिपीट। ठीक है, तो दोनों सॉल्व करेंगे अपन। पहले 98 देखेंगे, फिर 99 और फिर 100 ऑब्वियसली, पर दोनों सेम है, मैं तेरे को अभी से बता दिया। तो इसको सॉल्व कैसे करने का, तो वापस इंटरसेक्शन लग जाएगा, क्योंकि उसने तेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल आइदर बाय 3 और 8। मेरे को एक ऐसा नंबर लाके दे, ऐसा नंबर लाके दे जो या तो 3 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे नंबर लाके देता हूँ जो 3 से डिवाइड होता है। ऐसे कितने नंबर रहेंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर थे 30, और मुझे 3 से नंबर डिविजिबल चाहिए, तो मेरे पास 10 नंबर रहेंगे, 3, 6, 9। अरे हाँ ना, ऐसे रहेगा ना, 3, 6, 9, ऐसे कितने नंबर रहेंगे 30 तक, 10 बराबर है। ओके, फिर मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 8 हो। तो 30 नंबर है, डिविजिबल बाय 8, ऑब्वियसली खाली कितने निकलेंगे, 30, 8 3 ज़ा 24, तो 3 ही निकलेंगे। तेरे को दिखा भी देता हूँ, 8, 16 and 24। अब क्या दोनों के बीच में कोई ऐसे नंबर है जो कॉमन है, जो कॉमन है, ऑब्वियसली जो उसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, है ना। 24 इधर भी आएगा, ऊपर भी आएगा। तो यहां पे कॉमन ऐसा नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 and 8, एक ही ऐसा नंबर है। कौन सा नंबर है वो, 24। ठीक है, ओके। अब तेरे को उसने क्या पूछा था कि तेरे को इसको प्रोबेबिलिटी लाके देनी है। ठीक है, अगर तू एक नंबर चूज कर रहा है तो देख, नंबर डिविजिबल बाय 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10 डिवाइड बाय 30। 30 में से 10 ऐसा नंबर निकल सकते हैं, प्लस 8 की कितनी, 3 डिवाइड बाय 30, पर इसमें से कॉमन भी तो है, उसको हटा, -1 डिवाइड बाय 30, 12 डिवाइड बाय 30। तो 12 डिवाइड बाय 30 करेगा तो कितना आएगा, अच्छा डेसिमल में है, तो 12 डिवाइड बाय 30 या तो आ गया 0.4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ओ, किंग और क्लब वाला क्वेश्चन नहीं किया था सर, तेरे को कैसा पता चला इधर कॉमन आएगा। और यूनियन एडिशन थियरम याद रखने का, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भूलने का नहीं, याद रखने का। क्लियर, क्लियर। चलो आज 99। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1, पी ऑफ ए यूनियन बी 5/6, बी डैश दिया है, ए डैश पूछा है। सबसे पहले बी डैश से बी ला, फॉर्मूला में लगा, ए मिलेगा, और ए से ए डैश ला। आ जाओ, तो अभी फॉर्मूला लिखा था, वापस लिखते हैं। क्वेश्चन 99, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ बी डैश दिया है, तो अपन पी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते। पी ऑफ बी भी कितना रहेगा, आधा। इंटरसेक्शन 1/3 है, ये 5/6 है, ये 5/6 है। पी ऑफ ए मेरे को फाइंड आउट करना है, पी ऑफ बी आधा, और ये कितना था, 1/3। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 5/6 इक्वल्स टू पी ऑफ ए, 3 इधर 2 इधर प्लस 1/6 हो गया ये। तो पी ऑफ ए अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 5/6 माइनस 1/6, तो पी ऑफ ए आ जाएगा 4/6।
जो कि आ जाएगा 2/3। अगर P ऑफ A 2/3 आया तो P ऑफ A डैश कितना आ जाएगा 1/3। कौन सा ऑप्शन है? देख उसने ना 2/3 भी दिया था तेरे को कंफ्यूज करने के लिए। अगर तू भूल जाए बाई चांस एग्जाम में तो टेंशन में रहेगा, अभी तू टेंशन में नहीं है, अभी तू फ्री है, तो गड़बड़ कर सकता है। सी ठीक है, सब सब वापस 30-30 सेकंड के, ये 30 सेकंड का सॉल्यूशन। मैं देख मैं तेरे को टाइम बार बार इसके लिए बता रहा हूँ कि तेरा जैसे ही ये सारे क्वेश्चन है कि तेरा टाइम उतना टाइम में कंप्लीट करके तेरा रेडी होना चाहिए क्वेश्चन आंसर भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दे, टाइम वेस्ट मत कर। आखिरी क्वेश्चन ये पेपर का, और फिर इसी के साथ तेरा पहला पेपर समाप्त हो जाएगा अपना, राइट। सो लेट्स सी, a number is selected at a random from first 100 natural number। सेम चीज़ है, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो अभी किया तेरे को, सबसे पहले ऐसा नंबर ले जो मल्टीपल ऑफ 3 है, फिर मल्टीपल ऑफ 7 है, फिर कॉमन है जो डिविजिबल बाय 3 भी है एंड डिविजिबल बाय 7 भी है। तो 100 नंबर्स थे, 100 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 33.33, पर ऑब्वियसली तेरे को डेसिमल नहीं लेना है। ऐसे 33 नंबर है 1 से 100 के बीच में जो डिविजिबल बाई 3 है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे 100 नंबर है। अब वैसे वही 100 नंबर में जो डिविजिबल बाय 7 हो, तो 100 डिवाइड बाय 7 करो, 100 डिवाइड बाय 7 कितना आया 14.28 आया। 14.28 यानी कि कितने नंबर्स है बेटा, खाली 14 नंबर्स है। ठीक है, अब जो 3 से भी डिवाइड होते हैं एंड 7 से भी डिवाइड होते हैं, तो इन शॉर्ट 21 से डिवाइड होता है ना, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, तो 100 डिवाइड बाय 21 कर, 3 नंबर 4 नंबर आएंगे, 4.76 यानी कि 4। वो कौन से 4 अगर चाहिए तो मैं तेरे को लिख भी देता हूँ। 21 का टेबल बोलना चालू कर, 21, 42, 63, 84, और देख ले ये 4 नंबर 3 से भी डिवाइड होते हैं एंड 7 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब तेरे को प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो ढूंढ ले, मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो 3 की कितनी है 33, 33 नंबर हो सकते हैं 100 में से, 7 के 14 नंबर हो सकते हैं, और कॉमन जो 3 से भी होते हैं एंड 7 से भी होते हैं। 33 प्लस 14 माइनस 4 करेगा तो आ जाएगा 43 डिवाइड बाय 100। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, सो आपका बेटा इसी के साथ आपका दिसंबर 2023 मैथ्स आशीष सर ने कवर कर लिया, स्टैट और लॉजिकल रीजनिंग मैंने कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से ये समझा रहेगा, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, गेट द मैक्सिमम आउटपुट, मिलेंगे फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।